and thank you, Seema, and the core committee of JV Nagar CP Study Circle. And good evening to one and all present today in this webinar. Uh, Tally is always been near to my heart. The way she said, Jalpa, कि spotlight वरना पे करो. हाँ, Vanna is a speaker for the day. So the question remains कि we want our life balance should also tally, right? So this name tally itself inspires me. You want to tally something in your life. Everything should be balanced. So the tally, जब 1987 I was introduced to 1988, 88, 89 में company DOS version में चल रही थी. Those of you, because I am 33 years into practice, so 87 I started working as a career. So we were previously writing books of accounts with hands, and then the software came. There was a Tata EX, then Trio, and there were so many softwares were there. But Tally has remained in the business for so many years, and they have kept on improving. So now Tally ERP, it started like 4.5, 5 version, 5.4, 6 आया, 7.1 आया, 7.2 तो मेजरली अभी भी बहुत से लोगों के पास है जो पायरेटेड वर्जन रहा होगा. बहुत से लोग ऐसे ही यूज कर रहे हैं जिनको स्टेट्यूटरी कंप्लायंस के लिए यूज नहीं करना है, तो दे हैव नॉट मूव्ड ऑन टू द ऑफिशियल. बट दोज ऑफ नाउ, वंस the TeleRP 9 has come and then the GST has come, and that has made people realize that for statutory compliance, come what may, you will require some software, a package, accounting package, which is giving you comfort of filing your GST returns, your statutory compliance for that matter. And Tally has come as their rescue, and they have, you know, what I like in Tally is that they're continuously upgrading. So version after version, release after release keeps on coming. So these happens in our life also. We always see कि कल जो मैं थी या whatever I was, am I stepping one step ahead? मतलब progress can be monitored by you fighting with your own achievements. So you have to be first, go on improving, advising yourself, and that is what we like. Today morning only I saw one ad advertisement of Amitabh Bachchan. So that also reminds me that at the age of whatever age he is carrying, he is ready to take new challenges, and come with the new fresh ideas. So that is what here also Seema thought कि अगर last month में मैंने tally किया तो why in this month? But then she has a concept कि नहीं, हमें GST compliances point of view, our GST audit season is going to start. So what help she can do to the study circle members or some tool in our hand, because most of the SMEs are using Tally, and so now half of them may have moved to Prime or maybe they are in ERP 9. So what will be my first agenda is that I'll show you how a one company, CA practice management, one company I have already created, that I will be doing, showing you 10 minutes. We will be understanding how Tally can be used in our own office to cater our own, you can say, the practice management. There are practice management software, but Tally is always there in my desktop. Can I use it for my improvement in my working abilities, or my staff what they are doing, my articles what they are doing? So we come out with something, some innovative idea. So I am now sharing my screen. So अभी आपका डेटा अगर टेलीआरपी 9 में है, तो मैंने यहाँ पे एक क्लाइंट का जैसे पेस्ट करके रखा है फोल्डर के अंदर, तो इट शोज मी माइग्रेशन रिक्वायर्ड. सो और ये जो जेबी नगर स्टडी सर्कल का मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है, तो मैंने ये नई कंपनी क्रिएट की थी. सो लेट मी शो यू हाउ वन कैन क्रिएट द कंपनी. दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कंपनी क्रिएट करते हो तो फुल दे हैव चेंज द फुल फॉर्मेट. They have made easy, everything should be now easy. So suppose, first of all, see the look, the screen has changed. It is like a wow, you are on a web browser kind of thing, and you can just shift around here and there. So the very first thing is create company. Moment you open up Tally Prime, here the buttons are going up. यहाँ पे ऊपर बटन आ गए हैं, company, data, exchange, import, export, mail, print, and help. So everything has moved on. So they wanted to give you big screen. So now create company. So if you want to create any company, let's create a company. The path is here. You can define the path, or you can copy paste the path. The best thing in the new Tally Prime is what? Control C and Control V function is working. They have kept the original function also.
that is Control Alt C and Control Alt V, whosoever was using. But now it has become Control C, Control V also will function. So keeping the previous one, they have moved out with the new one. जो हमें आदत है Excel से या कहीं से भी हम फाइल कॉपी पेस्ट करते हैं. So we just press Control Alt, Control C and Control V. So that function is now working here. So say we write JB Nagar. Mailing name is that what it will be given to the outside world whenever your any email goes or any report goes to the outside world. यहाँ पे अभी now Maharashtra, they have made everything region wise. So first you select Maharashtra, India will automatically come. अगर अपना पिन कोड 53 या 59 जो भी है, यहाँ पे आप टेलीफोन जो भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालेंगे वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके खुद के इनवॉइस पे. आई एम लुकिंग फ्रॉम दी दी वन चार्टर्ड अकाउंटेंट. सी जेबी नगर से इट इज अ वन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म फॉर एग्जाम्पल. वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना रहे हैं जो भी हम बना रहे हैं काका. So then you put your mobile number, email address and everything and the financial years and books beginning. We all know books beginning means अगर कंपनी आज स्टार्ट हुई तो आज का डेट आ जाएगा. But financial year will always remain 1st of April. Security is always required because I being an auditor, then I go to audit your company data and you have more than 1 or 2 users. I should be able to catch hold of one who is doing this. Somebody should be answerable. So it gives you responsibility and there is a integrity, and as far as data is concerned, you can ask someone if something is changed afterwards you have done the audit. So if you want to really do audit through using Tally या Tally data को आपको audit करना है, there has to be security control, otherwise it will not make sense. तो यहाँ पे जो यूजर आईडी पासवर्ड आप डालते हो वो आपको याद रखना है because it is very important to remember that this will be permanent information which you will be keeping. So यहाँ पे हमने डाल दिया है यूजर आईडी पासवर्ड. वो जैसे हम गूगल में बनाते हैं वैसे वो कोई भी अगर बैंकिंग अकाउंट में भी जहाँ पे भी जाते हैं वो 2 times they ask you. Forgetting your password will render your data in a, maybe you find it is very low, but I'm just trying to make you feel a Prime has changed the module how it is going to Tally audit features yes and no. So यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो चली गई है और F11 totally उन्होंने निकाल दिया है. F11 was a features in a company. So that configuration part they have reduced and they have minimized and they have made it user friendly. So once the company is created, you go with your user ID password. So company created successfully. उसके बाद immediately the Tally throws you enable the features as per your business needs. Previously what was happening, Tally RP9 once you create a company, unless you know F11 features में जाके you have to enable certain things, you will not be start operating Tally immediately and whatever. Some help you were supposed to take. And it is also here user friendly questions are put, maintain account yes or no, whatever, and then select whichever applicable to you, browser access, net service access, everything is being put at one place. Okay, so I have already created one company in which I have imported certain data. I just wanted to give you the first screen feel, that's why I have brought you here. Okay, so this is just control I am doing, accept the screen as it is, and I want to now have another company. So I want to select company from now. JBSC मैंने already बना के रखा था, उसमें मैंने कुछ डाटा import करके रखा है. Some masters I have imported just to show you how it looks like. So display statutory. I want to show you statement of account and cost centers. मैंने cost centers बनाए हैं और मुझे डेटा एक मिलेगा. Tally Prime has just come up. So आप लोग जितना जानते हो मैं उतना ही जानती हूँ क्योंकि हमें मूव ऑन करना है वहां से यहाँ. और G फंक्शन इज देयर. कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ चले जाइए. I wanted to see list of masters. In that I wanted to show you cost centers. अभी देखो मैंने कैसे cost center बनाया. If you do accounts writing job,
उसमें क्या क्या एंट्री हमारा स्टाफ कर रहा है। आप ऑडिट करते हो, किस किस प्रकार के ऑडिट करते हैं, वो सब मैंने कॉस्ट सेंटर बनाया है। सीमा, आर यू विथ मी? इज गोइंग फाइन? हेलो, जगाते रहना पड़ेगा भाई। हाँ कृष्णा जी, यू आर देयर। सो स्क्रीन बराबर है ना? स्क्रीन विजिबिलिटी इज ओके? Yes, yes, it is okay. Yes. Fine. So are we understanding? What I'm trying to do is that whatever type of work you are doing has been put as a cost center. So moment your article clerk does some work, so article clerk or your staff will be opened under creditors. You have to create their name under creditors, and all your clients are debtors. Because time is the only commodity which we sell. So there are practice management software available. बट अभी स्मॉल मिड साइज कंपनी 4-5 का स्टाफ है, 8-10 लोगों का स्टाफ है, तब तक हम लोग प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं लेते। तो तब अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैली है तो क्या हम उसका यूज कर सकते हैं टू गेट आवर ओन रिपोर्टिंग सिस्टम, प्लस आवर ओन बिलिंग ऑल्सो कैन बी डन फ्रॉम दिस। सो दिस इज हाउ आई जस्ट क्रिएटेड सो मेनी ड्रिल डाउन। जो जो आप काम करते हैं, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, यू कैन हैव दैट थिंग लिस्टेड अंडर कैटेगरी वाइज कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में भी सब कॉस्ट सेंटर बन सकते हैं। लाइक इनकम टैक्स इज अ मेन कॉस्ट सेंटर, दैट व्हाट यू डू इज अपील ड्राफ्टिंग, ई असेसमेंट, प्रिपेयरिंग आईटी रिटर्न, रिप्लाई टू नोटिस ऑफ आईटी और रिवाइज आईटी रिटर्न और अपलोडिंग ऑफ आईटी रिटर्न। बिकॉज ईच work will be designed and devised by somebody else. मेकर चेकर कॉन्सेप्ट रहता है, एक खाली प्रिपेयर करता है, दूसरा अपलोड करता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव ड्रिल्ड आउट। अभी देखो हमारे वहां तो लेक्चर्स, वेबिनार, स्टडी के लिए भी बच्चे लोग का टाइम जाता है, तो हमने वो कैटेगरी क्रिएट कर ली है कि हाउ मच टाइम वी आर इन्वेस्टिंग फॉर क्रिएटिंग the PPT for the webinar, or how much time I invested in webinar. So एवरीथिंग, एनी काइंड ऑफ वर्क इज बिन, जो आपकी कंपनी काम करती है, इवन कोटेशन वर्किंग। हमें लगता है कोटेशन बनाना इजी नहीं होता है, पहले क्लाइंट को हम समझते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर हम उसको कोटेशन भेजते हैं। सो द वर्क, एवरी माइन्यूट वर्क वी हैव ट्राइड टू फिगर आउट what our company is doing, what, and even training I give, even TDS return, updating any file, whatever। अभी देखो हम क्या बोलते हैं, वर्क शेड्यूलर फाइल बना दो ऑफिस में, वो वर्क शेड्यूलर फाइल को अपडेट करने को आधा घंटा जाता है स्टाफ को, क्योंकि लास्ट दिन में एक साथ में 40 रिटर्न भी गए होंगे। सो इट टेक्स टाइम। सो एवरी मिनट ऑफ द स्टाफ और माई सेल्फ हु इज वर्किंग हैज टू बी ट्रैक डाउन। सो वी हैव ट्राइड टू क्रिएट द कॉस्ट सेंटर्स विच इज प्रैक्टिस मैनेजमेंट यूजिंग टैली। ऐसा लेक्चर का हेडिंग दे सकते हैं अपन। आई गेटिंग मी? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेजर्स, जैसे मैंने बताया, क्लाइंट के लेजर्स हमने सन्डे डेटर्स में क्लाइंट्स का नाम खोल दिया है, जो भी अपने अपने ओरिजिनल टैली में वो यहाँ से यहाँ इंपोर्ट भी कर सकते हो आप। एंड आवर स्टाफ विल बिकम दिस थिंग creditors for that matter. Okay, and I just was trying to get some data. So there is no transactions available to me. So how will I get the transaction? Okay. So I go to quick access and luckily if I can get, मैंने एक्सपोर्ट करके रखा था, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है। सो या तो मैं आपको टैली खोल के डेटा एक्सपोर्ट करता दिखा दूं, क्योंकि वाउचर्स जब तक आप देखोगे नहीं आपको नहीं समझेगा। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। And I wanted to show this very categorically क्योंकि हम एज अ सीए हमारा खुद का बिलिंग सबसे लास्ट होता है, which I don't want people to do. डे बुक ऑल्ट F2 1 जून से समझो यहाँ तक का मैंने डेटा लिया, ऑल्ट ई एक्सपोर्ट किया, नो किया, और मुझे एंटर करके मुझे Ctrl+C सिर्फ पाथ चाहिए था। बेसिकली आई हैड एक्सपोर्टेड बट आई फॉरगॉट द पाथ वेयर इट वुड हैव बीन बोर्न। सो जे डे बुक एक्सएमएल 23 जनवरी 3-24। अभी यहाँ पे खड़े रह के शिफ्ट एंड राइट एरो की यू कैन प्रेस।
So it will give me copy as a path, and then I select that. I'll come back to this. अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है import, right? मुझे करना है transactions, और यहाँ आके मुझे jmaster.xml मेरी फाइल, जो मेरा फाइल पाथ है, वो मैंने मास्टर्स क्रिएट किए थे वो, बट मुझे अभी ट्रांजैक्शन चाहिए, राइट? सो डे बुक एक्सएमएल, तो मैंने वहां से लाके कंट्रोल वी पेस्ट करना है. जब आप कंट्रोल वी प्रेस करते हो, दैट इन्वर्टेड कोमा कम्स, जस्ट डिलीट दैट, होम डिलीट, एंड योर डेटा ऑफ एक्सएमएल विल बी इंपोर्टेड. मैंने पहले मास्टर आपको दिखाने के लिए ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखे थे, and by the time Seema's phone came, so voucher import was there, not done. But I thought कि जो भी members अभी देख रहे हैं उनको वो प्रोसेस भी समझ में आया कि आप टैली में से डेटा डे बुक में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो. मैंने वाउचर का फाइल बना के रखा था XML, and that file I am now importing to my Prime. So as of now, exporting data from Tally 9 to Prime also is working comfortably. But migrate जितना जल्दी करोगे, no sooner or later new release will not come in ERP9, because मैं 2 वर्जन तो नहीं चला सकता हूँ. So नए वर्जन या नया अपडेट जो भी आएगा वो नई रिलीज में आएगा. टेली प्राइम में अभी ई इनवॉइसिंग भी आ गया है 1.1 में QR कोड के साथ. सो दैट ऑल वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ. सो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, अभी देखो हाउ मेनी वाउचर्स, 485 वाउचर्स वो इंपोर्ट करके लेके आ गया बंदी. एंड हाउ मच टाइम इट टू, हार्डली 2 मिनट्स. मैंने वहां से एक्सपोर्ट करके रखा था और यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो गया. सो this will now give me statements. I want to see now my reports. So display statement, and then I want to see the cost center summary. तो मैंने अकाउंट राइटिंग में मेरे दिस इज आवरली बेसिस नोटेशन किया गया है. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द डेटा कि कैसे वो काम करता है, हाउ पीपल एंटर. तो एक एंट्री बता देती हूँ कि XYZ कंपनी का नाम है, उसको यहाँ पे डेबिट किया है, अकाउंट राइटिंग का उसका कितना टाइम गया है और किस स्टाफ ने किया है और किस मंथ का क्या, वो मैंने उनको बोला है नीचे लिख दो. सो समवेयर सम नोटेशन यू आर डूइंग. सो दिस इज वन पॉइंट. तो 10-15 मिनट में मैंने आपको प्रैक्टिस मैनेजमेंट आपका कैसे किया जा सकता है वो सिखा दिया है. आई एम ट्राइंग टू गिव यू ग्लिम्स कि ऐसे आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हो. देन द रिपोर्ट्स आर इन योर हैंड्स. आप उसके साथ जितना वो करना है कर सकते हो. बाइफर्केशन, ये क्लाइंट के ऊपर मेरा टाइम कितना इन्वेस्ट हुआ था वो मुझे पता चल सकता है. मैक्सिमम टाइम खाते हैं और मिनिमम रेवेन्यू देते हैं, वैसे क्लाइंट भी होते हैं हमारे पास. सो मैक्सिमम मिनिमम टाइम मैक्सिमम रिटर्न्स वाले क्लाइंट पे हम ज्यादा ध्यान देंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे. दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू कन्वे. सो नाउ आई वांट टू शट द कंपनी. सो यहाँ पे राइट साइड में विंडो में पहले हम लोग ऑल्ट F1 कंट्रोल F1 करके ऑल्ट F1 करके कंपनी बंद करते थे मेन स्क्रीन में. यहाँ पे ऑल्ट F3 फीचर आ गया है, तो उसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे. नाउ कमिंग बैक टू दिस जेबी नगर जस्ट क्रिएटेड हम लोग ने, उसके अंदर हमें मास्टर्स क्रिएशन में फीचर्स भी उन्होंने तो बता दिया कि भाई कुछ है जो वहां पे क्रिएट करना है. तो सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स. अब लेजर्स में हमें पता है डे 1 से कैश और प्रॉफिट एंड लॉस 2 ही लेजर बन के आते हैं. नाउ इन जीएसटी रेजिम 17-18 में प्रॉब्लम ये था, टैली भी बोला था और डिपार्टमेंट ने भी अभी भी बोला है, आई डोंट वांट कि आप बाइफरकेटेड मुझे दो, आप खाली टैक्सेबल वैल्यू लिखोगे और वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी में खुद पकड़ लूंगा. बट धीरे धीरे पता चला इनपुट और आउटपुट अलग रखेंगे तो बेटर रहेगा. धीरे धीरे और भी समझ में आया कि परसेंटेज वाइज भी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बाद में तो ब्रेकअप मांगता ही है. 9 जब आप बनाते हो उनको परसेंटेज वाइज बाइफरकेशन चाहिए. So every time somebody has to do turnaround. So rather I create my ledger in such a fashion that later stage I don't have to worry. Then when I was initially giving lectures, I was telling them कि आप CGST में कभी परसेंटेज डिफाइन करो ही नहीं, क्योंकि वो आइटम कोड से ले सकते हो या लेजर कोड से ले सकते हो. आई बिलीव कि बेसिक आप लोगों को मालूम है, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि हम अगर कोई लेजर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हमारा अकाउंट जैसे कि फीस फॉर ऑडिटिंग लेजर क्रिएट करना चाहेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू क्रिएट वन लेजर से, पहले हम ग्रुप क्रिएट करेंगे प्रोफेशनल फीस. आई एम टेकिंग वी आवर सीए एज अ क्या बोलते हैं एग्जाम्पल अंडर सेल्स हेडिंग. आपको वो समझ में आना चाहिए कि मैं जब क्रिएट कर रही हूँ ये ग्रुप है, ग्रुप उसमें मैंने एक बार क्रिएट कर दिया.
अब उसमें कैसे होता है कि मैं ग्रुप लेवल पे भी डिफाइन कर सकती हूँ, क्योंकि 18% हमारा अक्रॉस द बोर्ड 18% ही लगने वाला है। बट इन अदर केसेस जहां ट्रेडर्स है वो 12, 5 और 18 और 28 कोई भी उसमें डील कर रहा है, तो वो सेल्स, लोकल सेल्स हम जब लेजर क्रिएट करते हैं तब हम परसेंटेज डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट एज फार एज सर्विस इंडस्ट्री इज कंसर्न, देयर इज अ 1% गोइंग ऑन ओनली इन जॉब वर्क, देयर आर 2 रेट्स, वो भी बाहर गया नहीं आया। So there you have to take care. What I'm trying to say, what industry you cater, accordingly you take a decision of creating the percentage at the group level. So आप group level में जाके भी आपका डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि अल्टर, अब मैंने बना लिया है मेरा एक ग्रुप, जैसे कि प्रोफेशनल फीस, और मेरा मन कहता है कि मुझे यहाँ पे बनाना है उसका, मैं यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करती हूँ आपके लिए, से फीस फॉर ऑडिट अंडर प्रोफेशनल फीस। सो टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, परसेंटेज भी नॉट एप्लीकेबल रखा है मैंने, एप्लीकेबल है जीएसटी। तो सेट अंडर डिटेल्स में जाके आपको सेल्स टैक्सेबल बनाया। अब प्रॉब्लम यही होता है कि यहाँ पे एक बार डिफाइन हो जाता है सेल्स टैक्सेबल, फिर जब वो पार्टी आउट ऑफ महाराष्ट्र की रहती है तो टैली थ्रोज यू द एरर मैसेज। सो दैट इज वन चैलेंज एवरीबडी हैज बीन फेसिंग। इफ यू रिकलेक्ट, क्योंकि आप जब लेजर क्रिएट करते हो तो वहां तो वो टैगिंग होगा स्टेट वाइज। सो हियर whenever I am creating the ledger, if I am locking it, it is a sales taxable. So ideally I should have two different ledgers right in the beginning. That's one way of doing this. Or you can override, because you when you override, meaning thereby what happens कि you know कि वो out of महाराष्ट्र है, और आप जब लेजर डालोगे तब आप आईजीएसटी ही डालोगे, so then you can override, else you will have to take your triangular reports में you will take care, आपको जो भी एरर मैसेज आता है वो ट्रायंगुलर रिपोर्ट में टैली विल थ्रो यू। सो इनिशियली आई एम टेकिंग इट सेल्स टैक्सेबल बिकॉज महाराष्ट्र का ही मेरा है, ज्यादा करके अपना जो रहता है वो हिसाब से। एंड फीस फॉर इनकम टैक्स रिटर्न से फॉर एग्जाम्पल हम दो लेजर बनाए हैं हमने, और यहाँ पे हमने सेल्स टैक्सेबल डाल के रखा है और 18% आपने डाल दिया। सो दिस इज माय सर्विसेज। तो 2 लेजर्स हैव बीन क्रिएटेड। अब जब आप ये क्रिएट करते हो तो आपको सीजीएसटी तो बनाना ही पड़ेगा, तो आप सीजीएसटी बनाओगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनाओगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जब हम सीजीएसटी बना रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये आपका आउटवर्ड पे लग रहा है, तो आउटवर्ड सीजीएसटी बनाए सो दैट आप इनपुट आउटपुट का जब भी रिपोर्ट निकालना है आपको इजी हो जाता है। जीएसटी सेंट्रल टैक्स वी नो, जब सीजीएसटी बोलते हैं तो सेंट्रल टैक्स। Now percentage of calculations, if I don't even write here, Tally has the inbuilt facility, जो लेजर में आपने परसेंटेज डाला है वो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकता है। जब मैं ट्रेडर का सिखाती हूँ तभी भी मैं वही बताती हूँ कि 5, 12, 18 चाहिए तो हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे आइटम्स का और उसका भी मैं क्रिएट करके बताऊँ। तो यहाँ पे अगर आप परसेंटेज नहीं भी डालते हो वो खुद कैलकुलेट कर लेगा। राउंडिंग ऑफ अगर हमें सेल्स में डालना है तो हम नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं। नॉर्मल इज 0.5 के ऊपर रहेगा तो वो नियरेस्ट 1 रुपी, 0.5 के नीचे होता है तो नियरेस्ट वाला जीरो साइड पे फिगर लेता है। अपवर्ड राउंडिंग मीन्स आपका 1 रुपीज 25 पैसे तो वो 2 रुपया ही लेगा, उसको फिर जीरो मतलब 0.5 अपर डाउन कुछ नहीं। एंड डाउनवर्ड राउंडिंग मीन्स इट विल टेक टू द नियरेस्ट डाउनवर्ड, तो अपर का वो भूल जाएगा। सो जनरली इट डिपेंड्स ऑन द फर्म्स पॉलिसी। आप ये जब आप आउटवर्ड का डिसाइड करते हो तब आप डिसाइड करो। इनवर्ड में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि परचेज के बिल्स बाहर से आते हैं, उसमें मैं ये राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकती बिकॉज सामने वाला जो चार्ज करता है मुझे वही बुकिंग करना पड़ेगा। सो आइडियली इट इज आवर प्रेरोगेटिव टू डिसाइड वेदर वी वांट टू राउंड ऑफ और नॉट। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं तो बोलती हूँ गवर्नमेंट ने पहले से ये सब राउंड ऑफ ही कर देना चाहिए था सीजीएसटी, वो 0.5 डालते रहो। आई डोंट नो व्हाई ऑन दिस अर्थ दे आर डूइंग ऑल दिस, बट पता नहीं, it will take time them to understand the real pain which people go through while doing the work. कंट्रोल आर से आप रिपीट कर सकते हो जो पुराना लेजर आपने क्रिएट किया। मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया और वहां पे वापस से जो मेरा पुराना लेजर है वो आ जाता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड देन इंटीग्रेटेड टैक्सेस। सो मैंने 3 आउटवर्ड क्रिएट कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे खड़े हैं तो हम इनपुट सीजीएसटी
for matter of repetition, but we need to understand that these are the master creations. You can always take master creation as an assignment. I am telling, कोई भी नया क्लाइंट कंपनी जब स्टार्ट होती है एज अ सीए, फर्स्ट आप अगर मास्टर क्रिएशन करके देते हैं तो उनकी लाइफ स्मूथ, बाद में वहां से डेटा एंट्री होके जो आएगा वो आपकी लाइफ भी स्मूथ कर सकता है. सो आई ऑलवेज इंसिस्ट master creation should be done by masters. And thank you, she 2-3 times jalpa called me the scaling master, मुझे अच्छा लगा. सो हमने 3 इनपुट क्रिएट कर दिए हैं. अब क्या होता है, आप जब काम करते हो तो आप आउटसोर्स भी करते हो, तो आपको खर्चे का बिल भी आएगा. अब मैं जिसको दे रही हूँ काम, प्रोफेशनल फीस मैं भी पे करूंगी, तो उसका जीएसटी वाला बिल हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो वी हैव मेड डिवाइस्ड प्रोफेशनल फीस पेड नॉन जीएसटी, ऐसे हमने लेजर ही क्रिएट किए हैं जिससे हमें इजी हो जाता है जब हमें रिपोर्ट देखना है. सो नॉन जीएसटी, दिस इज माय एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, नॉट एप्लीकेबल. जब आप एप्लीकेबल करते हैं, अब नॉन जीएसटी लिखा है तो यहाँ सीधा नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए. स्ट्रेट अवे इट विल नॉट पॉप अप इन दैट ट्रायंगुलर रिपोर्ट, और while doing the data entry it will not create hassle. And then there is a GST, indirect expense, not applicable, applicable yes करेंगे. यहाँ पे परचेज टैक्सेबल लिखना है. आप जब भी सिलेक्ट करते हो वो परचेज टैक्सेबल, सर्विसेज हो गए, गुड्स हो गए, परचेज टैक्सेबल है. खाली फिक्स असेट में जो जाता है तब वो बाइफर्केशन पकड़ता है कैपिटल गुड्स. व्हेन यू क्रिएट अ लेजर अंडर फिक्स असेट्स, it will show you the option of capital goods. Then there is a option non GST goods, exempt goods, that all you can define. So are we getting that there are certain ways of creating ledgers, methodology जब आप क्रिएट करते हो, और हमने उनको, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ट्रेडर रहेगा, अगर वो लोकल सेल्स करता है, समझो हमने दो इन्वेंट्री जो हमारी बनानी है, फॉर एग्जांपल हम इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं से स्टॉक ग्रुप, फिनिश गुड्स, मे बी योर दिस थिंग, क्वांटिटी इज एडेड, यस, और अगर एक ही रहेगा तो वो हिसाब से यस हो जाएगा. स्टेट अल्टर जीएसटी गुड्स, यहाँ से आप ग्रुप में अगर सेम रहेगा तो यहाँ ग्रुप में भी आप कर सकते हो. ओके, अभी फिनिश गुड्स में मुझे सब ग्रुप भी बनाना है. समझो कि मेरा एक है कि मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है और मोबाइल एक्सेसरीज है, सो दैट विल बिकम माय ग्रुप बेसिकली. मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, so that is under finished goods. और मुझे पता है कि इंस्ट्रूमेंट का एक ही रेट है तो मैं ग्रुप लेवल पे डिफाइन कर सकती हूँ. बट एक्सेसरीज में मेरी 15 अलग टाइप की एक्सेसरीज है तो मैं ग्रुप लेवल पे डिफाइन नहीं कर सकती हूँ जीएसटी का रेट. तो यहाँ पे अगर आपने डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे वो टैक्सेबल गुड्स है, और समझो कि आपको पता है 12% लग रहा है. थैंक यू सीमा आने के लिए. So then there is again mobile accessories, and then yes, प्राइमरी नहीं है, ये मेरा फिनिश गुड्स है. तो अगेन आप यहाँ पे आप नो ही रखेंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट कि अगर मैं उसके अंदर आइटम क्रिएट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूएसबी चार्जर, इट इज अंडर एक्सेसरीज. अब हमारा यूनिक क्रिएशन होगा नंबर्स और सी करके, सेम अपने टेली ईआरपी 9 के फीचर्स चल रहे हैं, शॉर्टकट्स चल रहे हैं वहां के. यूनिक क्वांटिटी कोड आपको डिफाइन करना है क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर 1. इट इज आस्किंग यू दिस, यू नो, एचएसएन कोड वाइज, एंड देन क्वांटिटी चाहिए तो उनकी यूक्यूसी आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है. सो इट इज बेटर व्हाइल क्रिएशन के टाइम पे ही आप उसको सिलेक्ट करें प्रॉपरली. अगर नंबर्स डेसिमल प्लेसेस नहीं है तो 0 कर दीजिए आप. जीएसटी एप्लीकेबल, यस, यहाँ पे हम यहाँ ऑन वैल्यू करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, और से 12% कर दिया हमने यहाँ पे, और हमने इसको सेव कर दिया. अब है ये मोबाइल कवर,
समझो कि उसका 5% है, तो यहाँ पे taxable 5% and controlling and goods and controlling. So whatever we are doing is just defining दो सेपरेट परसेंटेज लिए हैं और एक हमने मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में हमने ग्रुप में ही डिफाइन किया था। तो समझो सैमसंग मोबाइल अंडर मोबाइल इंस्ट्रूमेंट number, and then I don't define GST, it should pick up. That is what we have to understand. iPhone under mobile instrument numbers and ठीक है। सो हमने तीन क्रिएट कर लिए इन्वेंटरी और मैंने अपने लिए लेजर्स भी क्रिएट कर लिए हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर्स में आपको दिखेंगे कि क्या क्या हमने क्रिएट किया है। इनपुट सीजीएसटी ये 6 लेजर हमने खोल लिए हैं और यहाँ पे हमने प्रोफेशनल फीस पेड जीएसटी नॉन जीएसटी। अभी आपने ये नोटिस नहीं किया कि हमने टीडीएस को तो ऑन ही नहीं किया, मतलब अनदर स्टेट्यूटरी कंप्लायंस वो ऑन होगा तो वो आपको फीचर्स जब एनेबल्ड रहते हैं तभी आपको टैली पूछता है कि वो उसके ऊपर चार्ज करेगा कि नहीं चार्ज करेगा करके। So this is how the creations of the data has been. मैंने क्यों इतना छोटा सा ये this was a sample. So now let me take through one company which is already there. Okay. So up let's close this company. मैंने आप जानबूझ के ये काम किया क्योंकि बेसिक कैसे बनता है डेटा वो आपको मालूम होना चाहिए। So I'm closing this company and I want RR Industries. Let's see migration required. So आपका जो टेली का डेटा रहता है जब आप उसको ओपन करते हो तो वो आपको पूछता है डू यू वांट टू, जब माइग्रेशन करते हो तो वो बैकअप लेने को पूछता है। आपको कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, आपको ये जो डेटा पाथ है वो डिफाइन करना है, स्पेसिफाई पाथ करना है। और अगर मुझे कहीं पे डालना है फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मुझे उसको डालना रहेगा, समझो कि ये मैंने पाथ कंट्रोल सी करके ले लिया। अब यहाँ पे कंट्रोल वी करके भी आप पेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे हमने पाथ डिफाइन कर लिया, कंट्रोल ए कर लिया। आप देख सकते हो यस करके वो दिखा रहा है कि नया जो पाथ है वो यहाँ पे उन्होंने पिकअप कर लिया। अब मैंने माइग्रेट बटन दबा दिया है, अब इट विल माइग्रेट द डेटा। एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं। और आपने देखा कितने सेकंड में उसने डेटा ट्रांसफर किया। There was 898 transactions in this period, and if I go to the previous period 19-20 में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना था ये कंपनी में 627, यानी 1500 वाउचर्स को मूव करने के लिए उसे हार्डली मुझे लगता है 30 सेकंड में लिया होगा। सो द ट्रांजिशन इज वेरी स्मूथ, मूविंग इज वेरी स्मूथ। अगर आपने सब प्रॉपरली डिफाइन करके रखा है कोड एंड दिस एंड दैट, तो टैली में अगर रिपोर्ट्स देखने हैं तो सबसे पहले हमारा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स तो डी प्रेस करके स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स तो ओ प्रेस करेंगे और हमें समझो 3 भी देखना है। सो हम स्ट्रेट अवे 3 प्रेस करते हैं, 3 का बटन, और यहाँ पे देखो आपके लिए रेडी रहता है ट्रांजैक्शन कि देखो इतने वाउचर्स थे आपके इस मंथ में, 103 वाउचर्स। Out of that, in return 52 are participating, 50 is not relevant, and 1 is uncertain transactions. Tally is unable to define. So सबसे पहले हमें उसको एड्रेस करना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन द वाउचर, देन आई प्रेस एंटर, इट विल टेक मी टू द पर्टिकुलर वाउचर। कंट्रोल एंटर करके मैं वाउचर देखूंगी। इस स्ट्रीम आउटपुट लायबिलिटी हमने पे किया है, प्रोफेशनल फीस पे किया है। So this is not an item of what do you call GST, क्योंकि ये हम ऑनलाइन जब पार्टी का पेमेंट करते हैं तो हम उनसे हमारे लिए पैसा मंगाते हैं। जो पैसा मंगाते हैं 100 रुपीज कन्वीनियंस चार्ज भी उसको लग जाता है बेचारे को। ओके, सो आई डोंट वांट दिस वाउचर टू फॉर्म पार्ट ऑफ माय GST रिटर्न।
So I will just exclude the voucher and say yes. So you have to define and understand when you see the data coming from client. Every month data will be shared by them. So I have just excluded that voucher. And here is your 3B ready. बट आपका ये 3B सही है कि नहीं वो आप कैसे क्रॉस चेक करोगे? ये तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है डेटा. So always I say when you see this, you need to check this data with your profit and loss for that particular month and along with your sales register and credit note register if there be. Because यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो माइनस लेने के बाद ही आती है. So data comes after the subtraction. So on the front panel, if you see anything, तो credit note को वो reduce करके ही लेके आता है. So you will not be able to see the data, you know. So that's what the care you should be taking. आप यहाँ पे जब भी देखते हैं ITC भी यहाँ पे straight away आ जाता है आपके लिए. और आईटीसी का ब्रेकअप भी आपके लिए आ जाता है कि ऑल अदर आईटीसी वेयर फ्रॉम इट हैज कम. आई ऑल्सो एडवाइज नाउअडेज कि आप जो सर्विस के वाउचर्स आते हैं वो परचेज में एक वाउचर टाइप क्रिएट कर दीजिए सर्विस वाउचर्स करके. सो दैट विल मेक easier for them to collect the data. डेटा कॉलेक्ट करना इजी हो जाएगा. ओके. सो आर वी ऑल कंफर्टेबल टिल नाउ? ये स्क्रीन हमने देखा है और यहाँ पे अगर कंपोजिशन स्कीम से खरीदा है एग्जाम्प्टेड है सो दैट ऑल्सो कम्स हियर. अभी ट्रांसपोर्ट चार्जेस नॉन जीएसटी सप्लाई करके रखा है. यहाँ पे देखो एप्लीकेबल किया है, यस किया है और उन्होंने परचेज एग्जाम करके रखा है विच इज रॉन्ग. इट शुड हैव बीन परचेज. अभी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1500 से नीचे वाला जो कुछ है उसके बाद तो आरसीएम चालू है ना अपना. तो इट इज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एंड क्या हो जाएगा टैक्सेबल. और आपका 5% जो आरसीएम लगता है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है. So once I define this, whether Tally understands what I am supposed to do. So purchase from unregistered dealer taxable and I am saving this. I have to accept it. I am not overriding right now because मुझे वो triangular report में लेके आना चाहिए to show me. तो मेरे पहले तो वो एग्जाम में से निकल गया and where it has gone and parked themselves is here one. Number one, uncertain transaction, tax rate type not specified. मुझे यहाँ पे 5% लिखना है, 2.5%, 2.5%, purchase order taxable, and this is I am saving it. क्योंकि वो उसके दिमाग में परचेज एग्जाम चालू है ना अभी तक, पुराना ट्रांजैक्शन को मैं ओवरराइड कर रही हूँ. So finally, it is going out of my uncertain transactions, and now where it goes and parks, let us understand. It has parked itself in URD purchases, and it shows me that there is a RCM liability of 5%. So how tax liability has been created? URD होता है तो यहाँ पे अगर आपने define properly किया है, the masters define properly, Tally will tell you the liability. तो ऐसे तो महीने में 4-5 बिल होंगे तो यहाँ पे consolidated पूरे month का वो liability होगा. You can park one journal entry. How you can park that journal entry is state adjustment. So there on the right side we have the button. Let's click on that. स्टेट एडजस्टमेंट, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट. आप एक ही वाउचर में
वो आरसीएम का इनपुट भी ले सकते हैं एंड टैक्स आउटवर्ड लाइबिलिटी भी क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. अनदर वे ऑफ सी इट्स अ कंपनी टू कंपनी. अनदर वे इज दैट कि आप एक टैक्स ऑन आरसीएम लेजर खोल के रखो एडवांसेस में. देन यू पास वन जेवी ऑफ एडवांस पास थ्रू अकाउंट. आउटवर्ड लाइबिलिटी एक वाउचर से क्रिएट करो एंड जब आपका पेमेंट हो जाता है उसके पेमेंट होगा तब वो आउटवर्ड आरसीएम लाइबिलिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड देन यू अगेन बुक अ जेवी फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट. ये मैं क्यों पास थ्रू बता रहा हूँ. जहां छोटे कंपनी है पेमेंट अभी बनाया और अभी का अभी पेमेंट होने वाला है देन यू कैन यूज दिस मॉड्यूल. क्योंकि आपको पता ही है कि अभी जैसे चलान गया वो तुरंत पेमेंट करके आपको क्लेम ही करना है स्ट्रेट अवे. So then you can have a pass through, no pass through, direct credit जो दे रहे हो वो क्रेडिट आप क्लेम भी कर रहे हो इन द सेम वाउचर. तो हियर इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट लिख के आता है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड. दिस इज कॉल्ड स्टेट्यूटरी एडजस्टमेंट एंट्री इन टैली. नाउ उन्होंने फिगर्स दिया है, बाकी का होमवर्क तो आपको ही करना पड़ेगा. सो व्हाट इज दिस. आई एम टेकिंग सीजीएसटी आरसीएम इनपुट क्रेडिट. हमने ये लेजर ऑलरेडी बना के रखा है 5% 21,140 एंड देन प्लस एंटर. यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कंट्रोल एंटर मैंने किया ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल टैक्स एंड मैंने यहाँ पे ये खाली प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखा है खाता जीएसटी आरसीएम इनपुट क्रेडिट. ओके रेट और वैल्यू मुझे डालनी है, अमाउंट भी मुझे कैलकुलेट करना है तो ऑल्ट सी करना है 21,140 इंटू 2.5%. सो 528.50 वो स्ट्रेट अवे क्रेडिट में चले जाता है. सो मुझे इसी में डेबिट दूसरा अकाउंट भी करना है बाय एसजीएसटी आरसीएम इनपुट क्रेडिट. तो ये जो ऊपर वाला था वही फिगर वो खाली रिपीट करके लेके आते हैं बट यहाँ पे अमाउंट यू हैव टू कीन विथ योर हैंड्स. इट विल नॉट ब्रिंग द calculation per se. CGST RCM output liability again it is asking taxable value. क्यों? क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए कि कौन सा taxable value आप और परसेंटेज क्या है आपके वहां पे. तो CGST then SGST RCM output liability और मैंने यहाँ पे ये डाल के रखा है provide GST detail. Yes it is services and RCM और ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड. ठीक है पेड मतलब बुकिंग किया सॉरी. सो दिस इज व्हाट हाउ द ट्रांजैक्शन विल बी पास थ्रू द स्टेट एडजस्टमेंट. सो पूरे मंथ का एक साथ में आप एक डाल सकते हो. लाइबिलिटी बुक्ड यहाँ से वो निकल गया सो बैलेंस लाइबिलिटी विल बी 0. और मुझे लगता है किसी ने ऑब्जर्व किया कि वो क्यू माइनस में नीचे दिखा रहा है. एनीवन नाउ थोड़ा मोनोलॉग की जगह पे डायलॉग भी करना चाहिए. पढ़ लो काइल चुकी डालिया है जानबूझ के किया है सबको जगाने के लिए. जल्दी बोलो. ट्रांजैक्शन वैसे सही है खाली एक जगह पे नंबर डालने में मिस्टेक किया है. सीमा बोल सकती है. One can reply in chat box actually. चैट तो पढ़ने जाना पड़ेगा आपको. सब जागरूक है कि खाली इधर विंडो खोल के चले गए घूमने को. ये सब लोग हैं. हाँ देखो हम लोग जब कर रहे थे ना किसी ने बोला नहीं 2.5% लो मैडम 5% आईजीएसटी होगा तो आएगा. समझो मेरी बात. वो वहां पे माइनस साइन देख के मेरे को भी ट्यूबलाइट हुआ. ज्यादा नहीं साथ साथ चल रहे हैं हम लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं. एवरीवन इज लर्निंग कर्व. समझ के चलो. मोटा मोटा मुझे यही लग रहा है कि दिस शुड हैव बीन द एरर. और मुझे तुम लोग से बात भी करनी थी थोड़ा सा है ना. मैं अकेला बोलते रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है मुझे. So now there is balance liability 0. Are you with me everyone? सीमा समझ में आया? Yes. तो It is 2.5 and not 5% CGST. हाँ वो IGST का 5% था ना. आप CGST जब रिवर्स कर रहे हो तो 2.5% ही लिखना है. कहने का मतलब ये होता है. हाँ वंदना एक मिनट. If anyone wants to answer questions or reply, then one can answer in the chat box. Okay. So that मुझे चैट बॉक्स में लेके जाएगी ना. हाँ ठीक है. Answers are coming. No problem. Vandana, you can carry on. अच्छा सवाल भी आता है और जवाब भी आता है. Yeah.
बट Okay. एक समझ में आया ना, सी व्हाट आई टुक यू थ्रू इज दैट के किसी ने क्रिएट गलत हेड में किया था, मैंने उसको पहले सही किया, अगेन ट्राइब्यूनल रिपोर्ट में आया तो उसके दिमाग में परचेज एग्जाम पड़ा था, मैंने उसको उठा के वापस परचेज टैक्सेबल यूआरडी परचेज, तो फिर टेली को समझ में आ गया कि आरसीएम बनाना है, फिर उन्होंने यहाँ पे ये विंडो में हमको बताया कि आपकी लाइब्रेरी ये है, उसके बाद मैंने यहाँ से स्टेट एडजस्टमेंट उठा के एंट्री मारी, तो एंट्री मारने के टाइम पे भी अगर अपना जो कोई स्टाफ रहता है, गलती तो हर इंसान से होती है, तो अगर वो 5% डालता भी है तो टैली शोइंग यू, व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज दैट हियर एवरीथिंग इज टेकन केयर बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर क्रिएटेड, तो जहां जहां हम सही करेंगे तो रिपोर्ट सही मिलेंगे। सो अब हमें क्या फायदा हुआ कि हमने वो जब लाइब्रेरी बुक कर ली तो हमें वो यहाँ पे दिखाएगा मेरे ख्याल से कि ये देखो आपको यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव, ये आपको इनवर्ड में सेट ऑफ में भी उन्होंने ले लिया, और उसके बाद आप अगर जाओगे आउटवर्ड लाइब्रेरी में तो वहां पे भी उन्होंने बता दिया है कि ये इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, सी 3.1 A to E is total outward, okay, so it is taking care, so this is what I wanted to show, same way अगर आपका अभी सर्विस इंडस्ट्री में एडवांस पे भी आपको जीएसटी भरना पड़ता है, सो दैट यू हैव टू एनेबल इन मास्टर्स में वो क्रिएट आपका जब रेडी रहता है तो वो एडवांस पे भी वो वर्किंग करके बताता है कि भाई आपको भरना बाकी है। सो मेन सबका प्रॉब्लम ये था कि आरसीएम को बुकिंग कैसे करना है, तो ये एक बार रेडी होने के बाद अगर हमें इसको एक्सपोर्ट करके देखना है, जीएसटीआर 1 स्ट्रेट अवे एक्सपोर्ट होता है, इसके लिए ना आपको मेरे ख्याल से ये यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है साइट से, so this utility if it is lying in your what do you call it, folder, straight away it will give you, एक सेकंड ना, कि भाई टूट पड़ जाना है, हाँ, ये बहुत परेशान कर रहा है मेरे को विंडो, इसका क्या तोड़ पानी, मुझे एक नया विंडो खोलने का है, या कोई मुझे मेल कर सकता है क्या वो एक्सेलेंट समवन फ्रॉम यू, ये वाला साइट से यूटिलिटी इमीडिएटली मेल कर सकता है क्या, हेलो सीमा, हाँ, बोलिए। मुझे क्या ना चाहिए? ये यूटिलिटी मेल करो ना साइट से डाउनलोड करके, तब अच्छा, तक मैं साइट से डाउनलोड करके मेल करना है। हाँ वरना दौड़ वो नवनाथ या तुम कोई करो, और तब तक मैं दूसरा बताता हूँ, आई वांटेड टू शो देम दिस 3B कैसे दिखता है, सो 3B पे लेटर ऑन आते हैं, तब तक मैं 1 दिखा देती हूँ कि हाउ इट विल लुक लाइक, यूटिलिटी डाउनलोडेड होना चाहिए 4.4 जो लेटेस्ट था ना, अभी यहाँ पे 1 अक्टूबर टू दिसंबर वो हमने क्वार्टरली पहले से डिफाइन किया हुआ है, तो वो स्क्रीन पे यहाँ देखो इंक्लूडेड इन एचएसएन समरी, सो प्रॉपरली वो आपने एचएसएन डाला है तो वो रिपोर्ट्स प्रॉपरली दिखेगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 371 नॉट रिलेवेंट एंड इंक्लूडेड इन रिटर्न 74 ट्रांजैक्शन, तो B2B में 74, ये क्लाइंट ऐसा है कि B2C में बिजनेस ही नहीं कर रहा है, तो आपका आधा लाइफ तो वैसे ही आसान हो जाता है, फिर ऑल्ट ई किया, ई रिटर्न किया, एक्सेल स्प्रेडशीट, सपोज कि मुझे कहाँ लेके जाना है पाथ, अगेन आई विल स्पेसिफाई द पाथ, सो वेयर आई वांट टू पार्क इट, say I am doing today is JB Nagar, so I'll just select this path and I will just control V, अब यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल V करने से भी काम हो जाता है, okay, yes all vouchers yes and send, GSTR 1 स्ट्रेट अवे एक्सेल में एक्सपोर्ट होता है, 3B के लिए आपको यूटिलिटी रखना पड़ता है, so basically I'm using WinMem, so what I do is that once I get the data from this, then I use this data copy paste in my WinMem Excel, what you can say, template, and then it life becomes easy for me. So it takes 5-10 minutes max. Yes. Yeah, 5-10 minutes max.
एक बार यहाँ का डेटा क्लीन होता है ना तो वो डेटा फटाफट होता है. सो हम लोग टैली को ही इतना ठीक से प्लान करते हैं कि लेटर ऑन पार्ट इट बिकम्स इजियर. यहाँ पे ये टैली में से मेरे को पूरा बना के दे ही देता है B2B. ये मेरा कंट्रोल होम मैंने कर दिया. सो एवरीथिंग इज कमिंग. इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, supply, reverse charge, regular, and then rates and taxable value. My JSR one is ready from the software Tally itself. Only issue is that Winman में ये 29 आगे नहीं है, तो आपको जब शिफ्ट करते हो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. So you have to take care. Select from the pop-up window. That is the only issue we are facing. That I am going to write to the Winman also. कि भैया दोनों सेम पेज पे रो ना भाई, एक इधर क्यों चाहते रहते हैं. यहाँ पे UQC सब कुछ वो टोटल क्वांटिटी एवरीथिंग इट ब्रिंग्स इन. सो दिस आल्सो जस्ट यू नीड टू पेस्ट इन योर. सो योर वन इज टैली में से कंफर्टेबली निकलता है. देयर इज नो इशू इन दैट. ओके. और अगर आपने सब कुछ सही किया है तो आपका एनुअल कंप्यूटेशन भी आप देख सकते हो. 1920 का बताएगा क्योंकि लास्ट ईयर का अभी अपने को एनुअल कंप्यूटेशन देखो बाय डिफॉल्ट वो 1920 का ही दिखाता है. और यहाँ पे जो भी एम्बिग्विटीज है वो पहले. तो दिस इज ओनली व्हाट वी नीड टू टेल देयर स्टाफ टू क्लीन इट आउट. सो आवर लाइफ बिकम्स इजियर लेटर ऑन. सो दिस इज व्हाट इमीडिएटली अभी हम लोग ऑडिट स्टार्ट करने वाले. सब लोग सबका एजेंडा है फरवरी में हम लोग GST 9 पे लग जाएंगे. सो 9 फ्रॉम दी टैली जितना हम स्क्रीनिंग करेंगे तो अपना उतना काम आसान हो जाएगा. देखो अपना ऑडिट फीस का ही प्रॉब्लम है. देखो नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड. ये लास्ट मिनट 44 AD, यू नो. सो अनडिफाइंड भी रखना है मुझे. उसको एक्चुअली एक्सक्लूड ही करना है. वी डोंट वांट दिस वाउचर टू कम. दिस इज अ प्रोविजनल एंट्री. बट वो टैली को नहीं समझता तो वो हर एंट्री को लेके आएगा क्योंकि ऑडिट फीस पे आप वैसे GST चार्ज करते हो. अब जनरल एंट्री पास किए तो उसको नहीं समझेगा ना टैली को. सो इट विल थ्रो इन द एरर एंड दैट यू नीड टू एड्रेस. ओके. सो देन होल स्टफ इज रेडी फॉर यू. खाली आपको उसको वहां जाके प्लॉट करना है. देखो आपके लिए वो B2C एवरीथिंग इट इज कमिंग रेडीली. आपको जो अपनी यूटिलिटी रहती है क्या बोलते हैं उसको, GST वेबसाइट की. बेसिकली आई डोंट यूज यूटिलिटी, आई यूज Winman. सो आई विल जस्ट प्लॉट द फिगर्स ओवर देयर. So if there is a data, it is available for you readily. और अगर हमने डिफाइन प्रॉपर्ली किया, देखो यहाँ पे इनपुट्स इन परचेजेस अगर कैपिटल गुड्स रहता तो और सर्विसेज का अलग से दिखता है. मतलब जिस हिसाब से आपने डिफाइन किया है वो हिसाब से होता है. आई हैव टू शो देम ना कैपिटल गुड्स वाला ये कैसे दिखता है. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ खरीदते हैं. अल्टर मास्टर मुझे लेजर क्रिएट करना था ना. ओके. Alt G, create master. I want to create a ledger. Say I want to buy some laptop, for example. Now it is under fixed assets and I want to claim the GST on that. So यहाँ पे applicable होगा, yes रहेगा, purchase taxable. देखो यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स वो खुद लेके आता है कैपिटल गुड्स. जब यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो तो आपको जो एनुअल कंप्यूटेशन या 3B में भी जो इनपुट लेते हो वो कैपिटल गुड्स के थ्रू आया है, वो उसको समझता है. गुड्स और सर्विसेज वो भी हम यहाँ पे ही डिफाइन करते हैं जब हम लेजर क्रिएट करते हैं ताकि वो जब फाइनल बनती है समरी तब उसको समझ में आता है कि मुझे यही दिखाने का है. सो इट इज अ गुड्स. सो सिलेक्ट गुड्स. अगर मुझे पीरियड चेंज करना है यहाँ पे जाके 1419 31 मार्च 20
वाउचर एंट्री में जाके, जैसे कि मैंने बताया था कि परचेज में यहाँ पे देखो एक जीएसटी परचेज 18% बनाया गया है, बट आई वांट टू क्रिएट। अब देखो मैं वाउचर एंट्री के अंदर चले गए, वहां से भी वो मुझे बाहर और जी फंक्शन से मैं जा सकती हूँ, तो मेरा वो स्क्रीन इंटेक रहेगा। मुझे क्या करना है, क्रिएट वाउचर करना है तो फिर से मैं कर सकता हूँ वहां से खड़े खड़े जो मुझे करना है। टैली द न्यू थिंग्स हैव कम के आप जहाँ पे खड़े हो वहां से जो करना है वो कर सकते हो। और मुझे क्रिएट करना है एक वाउचर टाइप, जैसे कि मैंने बताया था सर्विस परचेजेस अंडर परचेज ओनली आप सिलेक्ट करना है आपको। अभी मैं वाउचर टाइप क्रिएट करवा रही हूँ क्योंकि टैली का जो मुझे 1 और 3 मतलब 3 भी जो प्रॉपरली चाहिए ना, so there has to be proper architecture when you create the masters at that time only you should take care। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड हम हमेशा रखते हैं सेल्स में, इसमें तो ऑटोमेटिक रहेगा तो भी ठीक है, बट मैनुअल ओवरराइड इज प्रेफर्ड। एंड प्रिवेंट डुप्लीकेट सीकिंग एडवांस। आपको कुछ आपका कंपनी का कोई नोटेशन डालना है तो आप डाल सकते हो। जब भी आप यस करोगे तो इट विल शो यू स्टार्टिंग नंबर कौन सा है, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। अगर आपके 10,000 के करीब मतलब 10,000 के ऊपर जाते हैं तो 5 डिजिट लो, 10,000 के नीचे रहते हैं तो अप टू 999 4 डिजिट भी काम में आ सकता है। तो हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाउचर्स यू हैव अकॉर्डिंगली विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट इज बीन डिफाइंड। तो अगर मुझे 4 रखना है तो अप टू 9,999 वाउचर्स मुझे कोई इशू नहीं है, एंड प्रीफिल विद 0 कर सकता हूँ। वट एवर नंबर, अगर मुझे 1 4 20 से ही कुछ स्टार्ट करना है तो आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीरियड। और जो भी आपको करना है यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि आपको आगे समझो जेबी नगर एंड स्लैश डालना है, डाल दो। यहाँ पे समझो ये आर है तो वो आर डालेगा, स्लैश करके 2021 डाल दो। और 16 डिजिट से ज़्यादा हम करना नहीं है, वो सब बाइफर्केशन से। और ये जस्ट सेव मैंने कर दिया। इफ आई वांटेड टू बाई, ये मैंने सर्विस परचेज बनाया है क्योंकि वो कुछ पे एक्सपेंसेस आपको बुक करना है तो वो इस मॉड्यूल के थ्रू करोगे तो इजी रहता है। आई वांटेड टू शो हाउ अ न्यू वाउचर टाइप कैन बी क्रिएटेड, एंड believe me I created this voucher type when I was going to enter one transaction। मैं वाउचर मॉड्यूल में थी, राइट साइड के पैनल में बटन है नाउ एक्सटेंड मोर वाउचर, और उसी में अभी वाउचर टाइप क्रिएशन भी डाल दिया जो कि पहले कभी नहीं था। यू हैड टू गो गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर वाउचर, go to the main screen। So ERP9 से हम जितना जल्दी प्राइम में मूव हो जाएंगे, we can use the new technology, new architecture। That's what I feel, that's something very advantageous। आई नहीं है अभी तक वो जीएसटी की, वो आने वाली थी ना हाँ, आपने। सेंड किया है। आई अभी रिफ्रेश करना देखो। हाँ which तो बोला वो जब तक काम करता है, हम लोग तो मल्टीटास्क कर रहे हैं, बाय द टाइम टैली कुछ करे अपन अपना दूसरा काम करे ना, वो गोल गोल घूम रहा है। तो तब तक हम कुछ मेल में आया है कि नहीं वो देखे। इनफैक्ट मुझे ना क्या डिस्टर्ब कर रहा है, ये मेरे से प्लस प्रेस नहीं हो रहा था, अभी हुआ। तो आई वुड जस्ट वेंट टू जीएसटी साइट एंड डाउनलोड इट, समथिंग लाइक दैट। ओके सो अभी अपने को तो एक तो आदत है विंगमैन की कि मुंह जबानी कुछ याद रखने का नहीं रहता है, मालूम है। मैंने भेजा है एक्चुअली। नहीं मैं उसके लिए नहीं जा रही, मुझे ना वो टू ए का भी देखना था कि हाउ प्राइम कैन हेल्प अस इन टू ए ऑल्सो, कैन इट ईज आउट आवर टाइम, वैसे अभी तो इसी में प्राइम इसमें आ गया है, देखो टैली का परचेज भी आ गया है। आप विनमेन में ही इंपोर्ट कर लो और वो साइट से डाउनलोड कर लो, वो दोनों का मैच करके खुद ही दे देता है आपको। तो पहले हम लोग क्या सोच रहे थे कि टैली का 2A है ना, टैली में भी देख प्राइम में भी था ना 2। अरे ये क्या गोल गोल घूम रहा है भाई, मैंने उसको परेशान कर दिया क्या। ओके सो आई वांटेड टू सी द टैली का दिस थिंग कि
टू कैसे वर्क कर रहा है, बिकॉज आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड। क्योंकि सॉफ्टवेयर जब काम करता है तो हम लोग उसमें नहीं ज्यादा दिमाग लगाते। बट एज फार एज आपने देखो डेटा एंट्री, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सीमा आई वांटेड देम टू सी दैट मास्टर क्रिएशन प्रॉपर्ली हुआ ना, तो टैली इज गिविंग यू रिपोर्ट, मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स यू कैन गेट, यू नो, बेसिकली। स्पेसिफाइड पाथ, कंट्रोल ऑल्ट वी, और हम काम कर रहे थे इसके अंदर। We wanted to see that capital good, right? So मैंने बोला कि हम पीरियड चेंज करते हैं, Alt F2, 1st of April 19 to 31st March, and we wanted to have a voucher, and समझो कि मुझे कैपिटल गुड्स भी परचेज करना है, तो क्या वो मुझे, अभी मेरा ये सर्विस परचेजेस बन के आ गया ना, और उसमें हम चेंज मोड एज अ वाउचर, एज अ अकाउंटिंग इनवॉइस, आप एज अ अकाउंटिंग इनवॉइस कर लो। आइटम इनवॉइस मतलब प्रोडक्ट कुछ खरीदा है तो वहाँ पे वो रहेगा करके। सपोज के सप्लायर इनवॉइस नंबर इज BMP-2-2021। और सुनो, ये जब मैंने टाइप किया ना, सीमा, आई ऑल्सो वांटेड, पीपल हैव दैट प्रॉब्लम कि टैली में व्हाट हैपेंस कि पीपल गो टू द लास्ट मंथ एंड एंटर परचेज एंड 3B घूम जाता है। सो मेक अ प्रैक्टिस और हैबिट इन अ कंपनी दैट एनी बिल्स रिसीव्ड लेटर ऑन, मतलब मंथ क्लोज हो गया और 3B चला गया, nobody should enter in the previous month, it should be entered in the next month, because there is a option supplier invoice number and date तो आप डाल ही सकते हो। so in tally अगर आप next month में भी बिल बुक करते हो, देयर इज ऑलवेज ऑप्शन ना, आप डेट तो इनवॉइस का एग्जैक्ट डेट डालो, क्योंकि अगर अदरवाइज ऑल्सो क्वार्टरली 2A रिकनसाइल होता है साइट का, काफी लोगों का क्वार्टरली है करके। सो दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि डेट ऑफ सप्लायर इनवॉइस नंबर जब आप एक्सेल में परचेज रजिस्टर एक्सपोर्ट करोगे कॉल्यूमिनर, सो आपके पास इनवॉइस डेट तो रहेगी सप्लायर की, और सप्लायर का इनवॉइस नंबर रहेगा, तो आपको उसी के साथ 2A को मिलाना है, और 3B आपका रोल ओवर टेंशन भी खत्म हो जाएगा। सो एवरीबडी हैड अ प्रॉब्लम, आई सेड कि देयर इज अ वे आउट। एक बार 3B चला गया तो आप पुराने मंथ में जाके कोई एंट्री कर ही नहीं सकते, आपको जो भी एंट्री करना है आप नेक्स्ट मंथ में करो, क्योंकि आपका, आप कितना रिकंसिलेशन बनाते बैठोगे, क्योंकि एक्सेल में मैं लिखूं कि मेरा 5 lakhs का इनपुट क्लेम ले लिया है, और फिर सडनली जाके कोई 5,000 का कोई बिल प्रीवियस मंथ में डाल देता है, तो मैं ट्रैक कैसे करेगा। सो मतलब 3B एंड देन माई बुक्स का एंड देन एक्सेल में डिफरेंशियल, तो उससे अच्छा था ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आपको डेट दी गई है, आप यहाँ पे जो डेट डालते हो उसी को जब कॉल्यूमिनर परचेज रजिस्टर एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हो, तो बेस्ड ऑन दिस डेट यू कैन हैव अ 2A का रिको वी लुकअप और जो भी करके आप करते हो, राइट, वट एवर वे यू आर रिकनसाइलिंग। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक द बेनिफिट, यू नो। सो Date of entering should be the current date. You are saying, no? यस यस, जो मंथ Okay. में मुझे मालूम पड़ेगा मैं उसी मंथ, मतलब 3B लॉक Right. हो गया है, सी अपलोड होने Right. की बात कर रही हूँ। अभी 20 तारीख का सबका 3B चला गया या 22 को चला गया, सो देन देयर इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि अभी दिसंबर का भी बिल होगा तो आप जनवरी में एंट्री करो, क्योंकि वैसे भी क्लेम तो आप जनवरी की 3B में करने वाले हो, Okay. और एनुअल रिकंसिलेशन में तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, पूरा 2A पूरे Date of साल का तो। entry. And what about date of invoice? डेट ऑफ इनवॉइस हम डाल ही रहे हैं ना इधर, आप सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट डाल ही रहे हो ना। Okay. Okay. हाँ, तो दिस इज द बेस्ट वे, आपको खाली एजुकेट करना है क्लाइंट को कि डोंट गो Right. टू द प्रीवियस मंथ एंड डू द डेट एंट्री Right. अनलेस इट इज अ, देखो स्टॉक वाला है, ट्रेडर है, तो ऑब्वियसली उसका तो माल ही नहीं आएगा जब तक वो परचेस का एंट्री नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम किसके साथ होता है, वो इंटरनेट वाले का बिल बाद में आया, या MTNL का बाद में आया, या इंटरनेट का बाद में, मैक्सिमम सर्विस के परचेस बिल बाद में आते हैं, मैक्सिमम जो साइट से मालूम पड़ते हैं, मेरे हिसाब से जितना मेरा 2 ढाई 3 साल का अनुभव रहा है जीएसटी के साथ, क्योंकि ट्रेडिंग रहता है तो मोटा मोटा वो चला ही जाता है वो आता, क्योंकि यू कांट सेल अ प्रोडक्ट अनलेस यू हैव दैट प्रोडक्ट, बराबर, लॉजिकली। सो वेयर आई वाज पर्टिकुलर, हम लोग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं ना, और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो।
कि कौन सा मेक, कौन सा ब्रांड, से 45,000, and then purchase taxable, and then input GST, इनपुट IGST। अब इनका सब परचेज इनपुट IGST में होते हैं, CGST है ही नहीं इनका। सो ऑल्ट सी जहां खड़े हो वहां से आप ऑल्ट सी, तो सेम फीचर्स, सेम शॉर्टकट्स आर वर्किंग हियर आल्सो। इनपुट CGST 9% and duties and taxes GST सेंट्रल टैक्स। अब देखो मैंने वहां परसेंटेज नहीं डाले तो भी वो कैलकुलेट 9% ही करता है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप जो भी मैंने क्रिएट किया है मैंने परसेंटेज डाले। सो इट इज दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऑल्ट सी, कंट्रोल आर एंड SGST 9% duties and taxes, GST and state tax, and then percentage of calculation डालोगे, doesn't matter, नहीं डाला doesn't matter because it will bring, okay। ये 31 मार्च 20 को स्पेसिफिक एंट्री मैंने डाली है जस्ट टू शोकेस। हमने जो अभी एनुअल कंपटीशन देखा था उसमें ये इनपुट वो अलग से कैपिटल गुड्स आइटम में थ्रो करता है कि नहीं। दिस एक्सरसाइज हैज बीन डन फॉर दैट रीजन। न्यू लैपटॉप परचेज, दिस इज हाउ वन ट्रांजैक्शन गेट्स कंप्लीटेड एंड अभी हमें उसका रिफ्लेक्शन देखना है। सो if I am in 1920 still I can go and see, but first time जब मैं annual computation press करूंगी by default tally understand कि मुझे पुराने साल का दिखाना है। तो या तो मैं पीरियड चेंज कर दूं straight away, क्योंकि वो उसको पता ही है ना कि जनरली annual you will see of the last year not of the current year, so that is how the programs are created। नाइनटीन 20 आया है। हाँ वो बाय डिफॉल्ट 90 मैं गया ना, इसीलिए 20-21 में गया। ये देखो मैंने अभी जो आईटीसी कैपिटल गुड्स डाला 45,000 का इनकम। व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज दैट कि बाइफरकेशन भी सब टैली खुद पिकअप करके आपको, और आईटीसी इनपुट्स कैपिटल गुड्स सर्विसेज सब दे रहा है प्रॉपर्ली अगर आपने डिफाइन किया है। व्हाट वाज माय टारगेट टू शो यू वाज दैट कैपिटल गुड्स भी वो कैप्चर करता है, इनपुट भी करता है, सर्विसेज भी करता है। तो overall everything is readily available provided you lock your data in tally clearly। और हम गए थे यहाँ पे सीमा से यूटिलिटी लेने के लिए। ये क्या है? यही चाहिए ना मेरे को। Okay, so where I should park it? Control V, save, and let's go to now prime and let's go to 3D GST। So just press 3। ओके अब हमें क्या करना था? ऑल्ट ई एक्सपोर्ट करना था, ई रिटर्न, यहाँ पे एंटर एंटर। एक्सपोर्ट लोकेशन क्या है मेरा? अभी जाके मुझे स्पेसिफाई पाथ करना है, कंट्रोल वी, एंटर एंटर एंटर। अब तो आ गया ना, जेबी नगर में ही डाला है ना भाई। एक्सेलेशन में आ गया ना, इधर नहीं आया, आ गया। कंट्रोल सी, स्पेसिफाई पाथ, कंट्रोल वी। अब वो वही ले रहा है ना भाई, कंट्रोल ए। अच्छा अभी वो 4.4 मांग रहा है और तेरा 4.6 है ना मेरे ख्याल से। If you recollect, वो 4.6 लिखा हुआ था ना उसमें। हाँ। If I'm not mistaken। इसको अपन झोल करते हैं ना, अभी 6 करके जाता है ना। अच्छा। अरे मैं झोल, अब हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? समझा? उसका दिमाग में वो 6 बैठा हुआ है। माइन्यूट थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। सी यहाँ पे वर्जन 4.6 लिख के आ गया। अब उसका तो ऑलरेडी नया वर्जन नहीं आएगा जब तक प्राइम का, या मैंने अपग्रेड नहीं किया होगा। मेरा 1 वर्जन चालू होगा, 1.1 में उन्होंने
ये फैक्टर कर लिया होगा. So you have to understand why people should upgrade. ये छोटी छोटी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ. People just forgo. अरे क्या है, मेरा पुराना डेली चल रहा है, काम हो रहा है. अरे ऐसा नहीं होता है. You go by the latest version, keep on updating the latest version. उससे क्या होता है कि जो साइट पे अभी आपने लेटेस्ट साइट से उठा के मुझे दिया है टेक्निकली, अब उसमें एम्बिग्विटी नहीं होगी तो ये उठा के वहां पे सब पेस्ट कर देगा. लेकिन मैंने तो बाईपास किया ना. उसके दिमाग में बोला है कि ये 6 ही है या 4 है. उसको जो क्या होता है, ये प्रोग्राम लिखा जाता है व्हेन इट इज क्रिएटेड कि ये वाली एक्सएलएम दिखे तो मुझे वहां जाके डालना है. समझा. अभी आ गया जीएसटी 3 एनिमल कंटेंट. तो आपका जीएसटी 3 ऐसे बन के आ जाता है. अब उसमें कुछ डेटा बेटा आया है. कंट्रोल होम, ये देखो यहाँ पे लिख के आ गया आपका आउटवर्ड सप्लाई. लेट्स मैच इट विथ अवर 3B. यहाँ पे है ना आपका 3.1. और लकीली इट वाज B2B जैसे मैंने बताया था. अगर B2C होता तो वो अदर बाइफरकेशन के साथ जाता था. ये एलिजिबल आईटीसी देखो, ये जो हमने जेवी मारी थी आरसीएम की वो आ गई. ऑल अदर आईटीसी भी आ गया. मतलब ये पूरा क्लियर कट कर करके वो अपने हिसाब से बना के लेके आ गया. फिर आप उसको वैलिडेट कर सकते हो. शीट वैलिडेट, please proceed to generate JSON file, then generate file, and then JSON is generated. So 3B भी टैली से जा सकता है, 1 भी टैली से जा सकता है. दोनों चीज उन्होंने दी है. खाली हमारा काम क्या होना चाहिए कि एक बार 1 और 3B चले गए, nobody should go back and enter anything. नहीं तो फिर क्या होता है, कंट्रोल ही नहीं रहेगा ना आपका. So that is what precautions we have to take. Okay. So 1 and 3B both I have shown you. 2 का मुझे डाइसी है. मतलब I have not done homework, so that's why I am not commenting upon it, but it is available. You all can explore on that. This 2, what is this? GSTR 2 मैंने खोला है ना. So how it looks like, B2B invoices बता रहा है, B2UR मैं और आप दोनों साथ में देख रहे हैं. To be uploaded on the GST portal, to be reconciled with the GST portal. क्या है भाई. हाँ, ये देखो, ये एंट्री तो अभी मैंने डाली है. ये मुझे लगता है ये कौन सी वाली एंट्री है, आरसीएम वाली है ना. 22 से क्या था ये, है ना अभी वाली. समझे, वो अमाउंट से समझ में आया 21,140 के हिसाब से मेरे को. ये बाकी है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. क्या क्या है जो परचेस है, परचेस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है. सो ऑल दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड टू. सो सीमा फ्रॉम द जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू मोटा मोटा मैंने सब क्लियर किया. अभी क्वेश्चंस पूछ लो और उसके बाद थोड़े मैं ऑडिट के टिप्स देना चाहती हूँ. और यूजिंग टैली मोर फ्रेंडली टू द सीए. जीएसटी रिलेटेड खाका कैसे मास्टर्स क्रिएट करना आपका प्राइम इंपॉर्टेंस था, जो मैंने आपको बताया है. आपको वो मोबाइल 2% वाला एक ही में बिल देखना है, वो भी मैं दिखा सकती हूँ. वो दिखाना है मुझे आपको. यू वांट टू सी दैट, राइट? Yes. हाँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लोज दिस कंपनी. इसको बंद कर देते हैं. एंड नाउ सिलेक्ट कंपनी. मुझे सिलेक्ट करना है कंपनी को. स्पेसिफाई पाथ, कंट्रोल V. और उसमें हमने आपको 2% मैंने जेबी नगर में क्रिएट किया ना डेटा भी. ओके. सो माय फेवरेट दिस थिंग. अगर हम वाउचर में जाएंगे, सबसे पहले हम परचेस करेंगे, कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो यहाँ पे देखो, अभी लास्ट एंट्री मैंने वो वाउचर अकाउंटिंग इनवॉइस की थी. तो यहाँ पे चेंज मोड है अभी राइट साइड पे. पहले क्या था, टैली ERP9 में आप कंट्रोल V करोगे तो वो मॉड्यूल चेंज हो जाता, बिल या दिस, या कंट्रोल V करोगे या ऑल्ट V करो, अकाउंटिंग इनवॉइस होता था. अब आपको खाली राइट साइड के बटन्स देखने हैं और समझने हैं. तो यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस है, आपको आइटम इनवॉइस करना है. फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू बाय द प्रोडक्ट. सो अगेन एंड अगेन सी आई एम रिपीटिंग कि आप अगर कोई भी तारीख को डाटा एंट्री हो रही है, परचेज यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस और डेट उन्होंने रखा ही आपके लिए. तो एक मंथ के बाद भी आता है, तो यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस. सो लेट्स हैव सम परचेज इन दिस. So supplier invoice number is 1 2 3 4 5 and on 1st April only we are buying. So all C करके मैं ABC Limited से कुछ खरीदती हूँ. तो अब ये क्या हो गया मेरा sundry creditors. So I always have a pattern कि आप इमीडिएटली 2 ग्रुप क्रिएट कर दीजिए. sundry creditors for goods कर दीजिए, अंडर sundry creditors
एंड देन इसको सेव कर लीजिए। और उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल यस ही करना है। अगर आपको वो 180 डेज से ज्यादा वाला जो रिपोर्ट निकालना है, एज ऑन ईयर एंड आपको कंपनीज एक्ट के लिए जो 180 डेज और मोर आउटस्टैंडिंग है, डेटर्स या क्रेडिटर्स या एमएसएमई आउटस्टैंडिंग, वो आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड दे हैव टैग्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन बिल टू बिल प्रॉपर्ली। एंड ड्यूरिंग द ईयर 180 डेज था कि नहीं, उसके लिए एड ऑन्स अवेलेबल है, मार्केट में काम चालू है। सो क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाती है तो रिपोर्ट टैली से डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, बट वी कैन हैव अ टर्न अराउंड, दैट इज कॉल्ड एड ऑन्स बोलते हैं उसको, सोपर्स बोलते हैं। तो थोड़ा एडिशनल कॉस्ट डाल के हम वो रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। बट वो रिपोर्ट भी तब जनरेट होगा, वो एड ऑन भी तब वर्क करेगा जब हमारा अकाउंटेंट या डेटा ऑपरेटर बिल टू बिल टैगिंग प्रॉपरली करेगा। कंडीशन अटैच। आपको डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अगर 30 डेज है तो डाल सकते हो, जैसे आपका उनके साथ नॉमिनल कल्चर है। और यहाँ पे आपको महाराष्ट्र इंडिया पिन कोड डाल दिया, कॉन्टेक्ट डिटेल सब कुछ डालो। बैंक डिटेल्स डालने से क्या होता है, आपको नेफ्ट अभी नो सूनर द डेज विल कम कि आपका स्ट्रेट ये गेटवे के साथ लिंक हो जाएगा। इवन सी डीबीएस के साथ था टेली का लिंकिंग, नाउ 6 मोर बैंक्स हैव बीन एडेड। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बैंक ऑफ बड़ौदा तो है ही, एचडीएफसी भी जुड़ गई है। तो आप यहाँ से पेमेंट इंस्ट्रक्शन अपलोड कर सकते हो एंड वहां जाके फिर ट्रांजैक्शन अपलोड होती है। पेमेंट जैसे ही आप करते हो देयर विल बी अ टीएक्सटी फाइल व्हिच विल बी अपलोडेड ऑन अ पोर्टल एंड देन फिर वो हम जैसे पासवर्ड डाल के उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चेक देने की जरूरत नहीं है अभी आपको। Tally is getting integrated with the banks, so that is a new regime is coming। 6 बैंक्स है। डीबीएस इंटीग्रेशन ऐसा है कि ट्रांजैक्शन अपलोड होने के बाद सीधा मेरे मोबाइल ऐप से मैं उसको ऑथेंटिकेट ही कर सकती हूँ। जबकि बाकी बैंक्स में अभी क्या है, पहले टीएक्सटी फाइल जनरेट होगी, वो आपको बैंक के पोर्टल पे जाके अपलोड करनी पड़ेगी एज अ इंस्ट्रक्शन। तो दैट इज द डिफरेंस। और यहाँ यस करने से 2 फायदे होते हैं कि यहाँ पे आपको चेक करना है कौन सा मोड है। आप उस क्लाइंट के साथ चेक से पेमेंट करना चाहते हो या ई फंड ट्रांसफर करना चाहते हो। अगर क्रॉस पे है और उसका मेन डिटेल्स भी डाल सकते हो। पैन नंबर मैंडेटरी है, उसके बिना वो आगे नहीं जाना चाहिए। तो लेट्स राइट समथिंग। और रेगुलर है, आपको यहाँ पे ही कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड सब डेफिनेशन डाल देनी है, जिससे आपका काम आसान हो जाए जब भी आप कोई भी क्रेडिटर्स या डेटर्स क्रिएट करते हो। सो एग्जाम्पल, ये अगर हमें सेम कंट्रोल सी, वो आदत हो गई थी कंट्रोल, अभी थोड़ा मुझे भी याद रखना पड़ता है, कंट्रोल वी भी चल रहा है अभी, यू नो समथिंग लाइक दैट। 27 एंड से 1Z3 या जो भी है, अगर सही नहीं है तो वो खुद बोलता है वेरीफाई द पार्टी जीएसटी एंड प्रेस एनी टू कंटिन्यू। ओके, तो मैंने यस कर दिया है और ऐसे ही डाल दिया। सो यहाँ पे कुछ किसके थ्रू, कोई ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया तो एंट्री आपको डालनी है, डाल सकते हो। एंड लेटर ऑन यहाँ मैंने पार्टी डिटेल्स हो गई। परचेज लेजर, अब मेरे पास परचेज था ही नहीं तो मैं क्रिएट करूंगी। सो इट इज अ लोकल परचेज अंडर दी हेडिंग परचेज अकाउंट्स, नॉट एप्लीकेबल। परचेज है तो अप्लीकेबल करना है, नहीं करना है मैंने वही बोला था, बाइफिकेशन नहीं रखना है, मेरा आइटम ट्रैक करेगा जीएसटी। तो एप्लीकेबल करके खाली गुड्स करके हम इसको छोड़ देते हैं, अंदर नहीं जाते, अंदर जाके डिफाइन नहीं करते हम लोग। खाली जब हम खरीदी करेंगे तभी हम यहाँ पे परचेज टैक्सेबल, या मैंने अंदर कुछ नहीं डाला है तो यहाँ पे वो, और F12 में वो पूछते रहेगा। अब मैंने मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, अच्छा कवर ले लेते हैं, और जो भी कलर्स है, रेड कलर, तो यहाँ पे वो लिख सकता है रेड ब्लू कितना है, अलग अलग रेड की 5 क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकता है अलग से, जस्ट फॉर हिज नोटिफिकेशन। ये कहीं पे रिपोर्ट सिर्फ देखने को मिलता है, वो एक्सेल में एक्सपोर्ट विद डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, जहाँ तक मुझे याद में आ रहा है। लेकर सी वो कब वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो समझो 250 रुपये के कवर है आपके, तो 2500 ये हो गया आपका। उसके बाद आप एक क्या था वो, सैमसंग मोबाइल भी खरीदना चाहोगे, जो भी कलर है डाल दिया, 5 क्वांटिटी आपने ली है, सिर्फ 40,000 का कोई मोबाइल था। और उसके बाद आपने आईफोन भी खरीदा, उसमें आपने 2 लिए, आपके 50-55 में आपको आए, 60 में आप बेच देना, जो भी है। उसके बाद मेरा एक कोई कवर था, तो मैं चार्जर भी ले सकता हूँ, सबके परसेंटेज अलग है। तो मैंने 10 चार्जर का ऑर्डर दिया था, 1000 रुपीज पे चार्जर में आ रहा है मेरे को। इसके बाद ये देखो,
आप देखो, आप डिफरेंस देखो, यहाँ एंटर होने के बाद जो होता है, यहाँ पे खड़ा है तो आइटम है, सो अंडरलाइन के ऊपर है तो आइटम डालिए, और अंडरलाइन के नीचे, फिगर के नीचे, देन इट बिकम्स अ लेजर. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट अ लेजर, अप्रोप्रिएट लेजर. सो इट इज नाउ इनपुट CGST. फिगर्स डायरेक्टली आ गए हैं, मुझे कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ा है, और मैं इसको सेव कर सकती हूँ, Ctrl+A. अच्छा, अब जो था, मोर डिटेल्स में देखो, GST टैक्स एनालिसिस देखते हैं हम लोग. अब हमें वो दिखाएगा, देखो जहां जहां जो जो परसेंटेज है वो उसने पकड़ लिया है. आर वी गेटिंग? सो अगर आप आइटम लेवल पे प्रॉपर परसेंटेज डाल रहे हो, लोकल परचेज में मैंने कोई परसेंटेज नहीं डाला है, आई कैटेगरिकली से कि वहां पे डालना ही नहीं है, क्योंकि वो आइटम से पिकअप करता है. सो परसेंटेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई 9% वाला आइटम भी मुझे डालना है यहाँ पे क्रिएट करके. अभी मुझे सडनली याद आया कि चलो कुछ और भी वो मांग रहा है, क्या बोलते हैं इसको, सादा चार्जर. एक USB चार्जर भी जाता है, ऐसे ही सादा चार्जर. तो ये मेरी एक्सेसरीज में मैंने क्रिएट किया, नंबर्स में क्रिएट किया, एप्लीकेबल किया, यस किया, ऑन वैल्यू किया, टैक्सेबल किया, 18% किया, और इसको सेव कर दिया, और गुड्स करके सेव कर दिया. और इसको मैंने पहले तो लेना पड़ेगा ना, कंट्रोल एंटर, नंबर्स करके, ठीक है, 5 नंग्स ऑफ 500, 2500, ये उन्होंने चेंज कर दिया. तो अब आप मोर डिटेल्स में जाके देख सकते हैं, टैक्स एनालिसिस और F1 9%. So this is what always I say कि when you define your item level पे जब आप percentage properly डालोगे, Tally will pick up this percentage from the item level. I hope I am clear now. This is a Vandana, this is a auto calculated IGST and CGST, SGST. Correct. If there is a rounding off, sometimes now the invoice doesn't match, the calculation doesn't match with the purchase supplier's invoice, then what is the method, how we will face this? हमें क्रिएट करना है एक लेजर, राउंड ऑफ परचेज. Okay. और उसको आप परचेज अकाउंट में रखो, टाइप ऑफ लेजर, इनवॉइस राउंडिंग कर दो, नॉर्मल राउंडिंग. मैं बोला ना सेल्स में बेसिकली करना है, परचेज में तो आपका कंट्रोल है ही नहीं ना, सामने वाला भेज रहा है टेक्निकली. मतलब जो परसेंटेज मैंने अभी जो कैलकुलेट होके आया ना, वो तो सेम ही आएगा. बट अभी क्या हुआ, अभी कोई लोग राउंड ऑफ GST में भी कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने जो खरीदा, अब मैंने जैसे किया कि वो 19,987.50 था, और अगला 19,988 लिख के भेजता है, तो पहले आपको इनवॉइस सेव करना पड़ेगा, और फिर जाके वो एडिटिंग में जाएगा, और फिर वहां पे हाथ से आपको वो फिगर चेंज करना पड़ता है. या ये जो मैं बता रही हूँ, ये तो सिर्फ राउंडिंग ऑफ है. इसका काम क्या होता है कि वो बिल को राउंड ऑफ करता है. ये जो लेजर है वो सेल्स में ज्यादा मायने रखता है. अब अभी हमने ABC से खरीदा था ना, ओके ABC. अब ये लेजर में जाके यहाँ जाने के, ये तो अपना ऑलरेडी राउंडेड ऑफ बिल है. बाद में अगर कुछ ऑड नंबर्स चाहिए, समझो यहाँ पे अपन 450 डालते हैं अगेन. अच्छा, कुछ अजीब डालना पड़ेगा. Okay, now suppose this comes like this to me, and This then is I 19,449 if you want to make it 19,449, then एक मिनट पहले, अभी यहाँ गया, देखो राउंड ऑफ परचेस मैंने टाइप किया, 24 पैसा वो खुद लेके आया. सुनो, हाँ ठीक है. और उसने नियरेस्ट रुपी में वो राउंड ऑफ किया. हाँ. समझे? अब वो वहां पे मैंने 1 लिखा था, मुझे वहां 10 लिखना है, मुझे जो लिखना है वो मेरे ऊपर है. और सुनो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, परचेस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, वो तो बाहर से बिल आ रहा है ना. समझो मेरी बात, सेल्स मेरा प्रेरोगेटिव है. अंडरस्टैंड सीमा? हाउ ऑन दिस अर्थ वो 100 लोगों से मैं परचेस कर रहा हूँ, अब हर एक का बिलिंग का पैटर्न अलग रहेगा, तो मैं कैसे उसको डिजाइन करूंगा. बट मुझे अगर मेरे बुक्स में राउंड ऑफ ही करके डालना है कोई भी चीज, तो मैं ऐसे डाल सकता हूँ. समझे? नहीं, लेकिन अगर परचेस में IGST का या ये CGST का SGST का अमाउंट इंस्टेड ऑफ 19,448.13 उन्होंने लिखा है 19,449, तो हम लोगों का हाथ से करने के लिए आएगा, ऐसे में पूछ रही हूँ. कर सकते ना.
once the transaction is done you can do. हाँ ठीक है, ओके ओके, समझा मुझे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर हो गया है ना फिर कर सकते हो. ओके ठीक है, नहीं सेव करके बाद में एडिट करना पड़ेगा ऐसे. हाँ क्योंकि देखो सर्टन थिंग्स इज देयर ना, उसको मैं कैसे बाईपास करूंगा ना, इट्स लाइक दैट. राइट, ओके, सो समथिंग सेल्स में बहुत इजी हो जाता है ये राउंडिंग ऑफ. राइट, हाँ क्योंकि सब लोग को वो देने का वो पैसा वैसा तो ये देखो वो खुद ही कैलकुलेट करता है, आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है. अभी देखो मैंने 449 हाथ से डाला ना, तो ऊपर वाला 50 को उसने 50 पकड़ के राउंड ऑफ किया. राउंड ऑफ किया, हाँ, उसको इतना मालूम है कि मुझे इनवॉइस को राउंड ऑफ करना है कम वर्ड में, और यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया है वो हिसाब से वो करेगा. सो इट्स इनवॉइस राउंडिंग लिखा है यहाँ पे, नॉर्मल राउंडिंग है, राउंडिंग लिमिट 1 है, 2 है, 5 है, जो लिखना है वो आपके ऊपर है ना. नॉर्मल की जगह पे डाउनवर्ड अपवर्ड जो लेना है, जैसे कि डाउनवर्ड लिख देते हैं और 1 कर देते हैं, तो अब वो देखो 60 कर रहा है. अब देखें 61 की जगह माइनस कर दिया उसने, तो डाउनवर्ड इंप्लाइज इट विल लॉजिकली अपवर्ड ही करना चाहिए. हाँ, तो वही मैंने इसीलिए बोला था कि डाउनवर्ड विल गो डाउन, नॉर्मल विल टेक दैट, वो जो नोमेनकल्चर है कि 0.01 से 0.50 के बीच में रहेगा तो नीचे वाला, और 0.50 के ऊपर है तो ऊपर वाला, दैट इज नॉर्मल राउंडिंग. एंड अपवर्ड राउंडिंग बोलेंगे तो अभी वो 1 रुपये, वो तो वो नॉर्मल में भी वही आता था और अपवर्ड में भी वही आएगा, 461 रुपीज वो अपर साइड पे लेगा बेसिकली. अगर यहाँ पे समझो कि मैं 2.25 करती हूँ ना, तो वो 0.55 करके 59 किया, समझा. अब ये फिर से चेंज हो गया, इसलिए 19449 आपका जो हाथ से करने वाला है, ये हम लोग हाथ से छेड़खानी सीजीएसटी में तो कभी करने ही नहीं देते हैं. अब उसने 75 पैसे करके ले लिया आपने 461, ठीक है. तो टेक्निकलिटी हो गया, हमें अभी लॉजिक समझ में आ गया कि टैली में परसेंटेज सही डालने हैं, राउंड ऑफ करके एक लेजर खोल सकते हो, डिस्काउंट का भी लेजर खोल सकते हो. देखो राउंड ऑफ में भी वो पूछता है इनवॉइस राउंडिंग, फिर डिस्काउंट का भी है, डिस्काउंट पे जीएसटी नहीं लगता है, वो एक बाईपास है, वो करने ही नहीं देता. अगर मैं इसमें डिस्काउंट लेना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल 19 एक नया लेजर करती हूँ, डिस्काउंट अलाउड करके जो बोलते हैं ना, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, इसमें अपने को मिल रहा है परचेज है तो डिस्काउंट रिसीव अंडर परचेज अकाउंट एंड इट इज अ डिस्काउंट कॉलम. आप देखो वो सीधा जीएसटी को जंप करता है. सो तो टैली के दिमाग में कैसा है कि डिस्काउंट है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बट जनरली लोग बात क्या करते हैं, एसेसेबल वैल्यू में भी माइनस करके फिर देते हैं, तो फिर हम ऐसे नहीं खोल सकते उसको जी. मतलब टाइप ऑफ लेजर डिस्काउंट नहीं कर सकते, अगर उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है तो कर सकते हो. समझा कि नहीं समझा मैडम? हाँ समझा. तो डिस्काउंट रिसीव में फिर आपको मैनुअल या परसेंटेज जो भी डालना है, यहाँ पे अगर मैं 5% लिखती हूँ तो अभी 16,228 वो लेके आया, तो कंट्रोल N 324 560.25 इंटू 5%, वो बेस वैल्यू का उसने 5% कैलकुलेट किया. 3,24,000. हाँ बेस वैल्यू का. प्रॉब्लम क्या हो जाता है फिर जीएसटी के साथ मैच नहीं होता है ना फिर वो फिगर, क्योंकि जीएसटी भी माइनस होना चाहिए. सो अनलेस इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट पे रहेगा और ये अननेसेसरी. सो वी डोंट एडवाइज पीपल टू डू जगलरी इन डिस्काउंट इन द बिल इटसेल्फ. या तो आप डिफाइन कर लो कि जीएसटी भी माइनस हो जाएगा उतना, क्योंकि देखो इसमें उसने नहीं किया है, और ये मैंने मैनुअल इंटरवेंशन किया था ना यहाँ पे. एटलीस्ट वो है, पहले क्या होता था मैनुअल इंटरवेंशन किया और बाद में वापस एंट्री खोलोगे ना तो फिगर्स अपने आप चेंज हो जाते थे. ये वाला जो जीएसटी का फिगर था ना, अगर तू नेक्स्ट टाइम खोलेगी ना एडिट करने के बाद भी तो वो चेंज हो जाएगा. प्रीवियस वर्जन मतलब 1 आध साल पहले वैसे होता था, अब आपने मैन्युअली किया है और फिर सेव कर दिया है तो फिर ये फिगर रहेगा वहाँ पे 19,449. बराबर है. नहीं तो पहले क्या होता था, मोमेंट यू गो फॉर एडिटिंग द वाउचर ना तो चेंज ही हो जाएगा परसेंटेज, मतलब ऑटो पायलट मोड, मतलब जो परसेंटेज उसको डिफाइन करने थे वो लेके आ जाएगा. टेक्निकली इट शुड ब्रिंग दैट ओनली, बट अभी उन्होंने एडिट मोड में वो मींस नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि आप एडिट कर रहे हो मतलब आपको पर्सनली ये फिगर डालना है, तो हेंसफोर्थ यही रखना है फिगर, यू नो. वो बताएगा उधर
अगर ट्रायंगुलर में हम जाके देखेंगे वो वराइज दिखाएगा, अभी हाथ से डाले ना हमने फिगर, हाँ तो लॉजिकली डीओजी 3 करेगी तू, तो उसने ट्रायंगुलर में अनसर्टन में क्यों लेके गया, मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड, तो वो खुद बोलता है आपने कुछ कलाकांडी की है, देख ये बोल रहा है ना वो खुद, बराबर। कितना किया है वो जो हाथ से जो तुमने किया वो यहाँ पे जाएगा। अब हम लोग या तो एक्सेप्ट एज इट इज करेंगे, राइट, या तो हम उसको चेंज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नोइंग क्या सही था करके। अब आपने बोला नहीं बेटा 19949 ही है, तो मुझे एक्सेप्ट एज इज करना है, दैट इज यस, तो फिर वो चला जाएगा उधर तुम्हारे इनपुट में। वो दिखाना ना कि डिस्काउंट पे अगर जीएसटी एप्लीकेबल है समझो हम लोगों को, और बाद में तो वो कैसे एडजस्ट होगा? एप्लीकेबल है तो वो तो गिनती ही लेके आएगा ना, और उसको फिर एप्लीकेबल आपको, करके दिखाने का तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऐसे ना। हाँ वो तो गिन के ही आएगा, और सीजीएसटी नीचे लिखेगी ऊपर लिखेगी, मेरे हिसाब से वो खुद ही वर्कआउट कर लेगा। लेट्स करेक्ट, ठीक है। लेट्स लेट्स एक्सप्लोर, अभी आपने डाला है क्वेश्चन तो उसको सॉर्ट आउट ही कर लेते हैं। एबीसी लिमिटेड अपना फेवरेट कंपनी, ओके, आपका कहना ये है कि मेरे डिस्काउंट पे भी जीएसटी लगने वाला है, राइट? आई मीन उसके डिडक्शन मिलना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, वो तो बोला ना, जो भी है उधर ही करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा ना इधर परचेज टैक्सेबल, उसको समझाना पड़ेगा। और अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैं क्या परसेंटेज डिफाइन करूँ। हाँ कौन से में डालूं? हाँ बस दिस वाज द इशू, और बिना परसेंटेज वो आपको बाहर लेके नहीं जाएगा। बराबर है। हाँ, सो दैट इज वाई थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे ही निकल जाते हैं, यहाँ पे नो रखते हैं, बाद में क्या वो खुद ही अपने मन से जितना मन में आता है उतना माइनस करता है क्या, वो देख लेगा। क्योंकि ऊपर वाला मैंने ऑटो मोड में रखा है ना, देखो अभी वो ओवरराइड बोल रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है विद कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्व लेटर, मतलब बाद में मुझे रिजोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट को भी मुझे इफेक्ट तो देना ही पड़ेगा ना। राइट। या अगर आप जब भी यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ पे एंटर किया आपने, सीधा डिस्काउंट ले लिया, से 15,000 was my upfront discount and purchase taxable, and एंड ऑफ लिस्ट कर रहा हूँ एक बार, ताकि इसकी दिमाग में से निकल जाए एंड ऑफ लिस्ट। अब मुझे वापस जाके ये डिस्काउंट के बाद अगर मैं लिखती हूँ इनपुट सीजीएसटी, और उन्होंने गिना, अब उसको पता ही नहीं है ना, देखो उसके ओरिजिनल वैल्यू लेके आया, दिखता है आपको 19448.10 ही लेके आया ना। राइट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड मोर डिटेल्स में टैक्स। एक मिनट, मोर डिटेल्स कहाँ चला रहा है, मुझे क्या चाहिए था, एनालिसिस चाहिए, टैक्स एनालिसिस। कहाँ चला गया इतना सारा, एंड ऑफ लिस्ट। एक बार सेव करता हूँ कुछ, वो प्रॉब्लम है ना तो वो बोल ही रहा है, वो पहले समझ ले, इट विल थ्रो यू द एरर। लेट्स गो टू डीओजी एंड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, डीओजी 3, एंड देन ट्रायंगुलर रिपोर्ट में जाके वो बोलेगा टैक्स रेट टाइप नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है ना कि मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड कितने परसेंटेज पे देना है आपको। हाँ क्योंकि वो वेरिड पर परसेंटेज है ना हाँ, ऐसे। हर एक का अलग अलग है करके, आपको डिस्काउंट 5%, डिस्काउंट 12%, ऐसा अलग से रखोगे तो वो खुद फैच करके देगा आपको। बराबर। ये एक चीज हो गई, और एक हाँ, दूसरा मुझे समझना था, बिकॉज ऑफ यू ओनली आई एम इंस्पायर्ड टू डू समथिंग, लेट्स हैव समथिंग टू नया एक बंदा है समझो, वही है हमारे पास नवीन नको सांगितले ना। नवीन आणलंय म्हणून वाटतं. लोकल परचेज टैक्सेबल से आई एम जस्ट बाइंग Samsung mobile and one quantity 40,000, enter discount receipt 7,000, purchase taxable, then I am giving input CGST. Okay, what I was doing was something minus 2,000, right?
अभी उसके पास परसेंटेज डिफाइन नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? सीमा, आर यू थ्रू? सो परचेज वैल्यू जब तक वो आप परसेंटेज डिफाइन नहीं करते उसको डिफिकल्ट है वो किस उसके साथ टैगिंग करें, इसीलिए हम लोग उसको नॉट एप्लीकेबल करके रखते हैं वहाँ पे, ताकि क्योंकि हम वैल्यू तो कम कर, प्रोडक्ट वैल्यू कम हो रही है, जीएसटी तो जितना भरना है गवर्नमेंट को वो हिसाब से ऑन द बेस वैल्यू, और वो ट्रेड डिस्काउंट अलग से दे रहे हैं, या फिर परसेंटाइल वाइज यू हैव टू डिफाइन। Okay. How many of you use the bank auto reconciliation? Checkbox कहाँ है अपना? मुझे participants में जाके check दिख रहा है मेरे को? हाँ चेक। I can't see check ना? Checkbox कहाँ है? More में क्या है? नहीं है इसमें। Check कहाँ दिखती है? मेरे को नहीं दिखती। आप नहीं थे सीमा, तभी हमने देख लिया कि उसको पॉसिबल ही नहीं है डिस्काउंट रिसीव अनलेस यू डिफाइन द परसेंटेज, इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, लेकिन आई थिंक अगर एक ही रेट है समझो जीएसटी का तो कर सकते हैं, बट फिर भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। हमने वही देखा, एक ही आइटम डाल के देखा तो भी उसने नहीं पकड़ा, बिकॉज रेट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो उसको नहीं समझता है कि मुझे कितना डिस्काउंट देना है। तो मतलब मैं जब इसमें ऑल्टर करके डाल दूं सब जो कि 5% है तो वो पकड़ेगा ऐसा। राइट, यहाँ पे परसेंटेज डालू ना तो ही पकड़ेगा वो। हाँ यहाँ पे परचेज टैक्सेबल 5% डाल दिया, देन 5% वो गिनेगा। ये समझो हम लोग वाउचर्स में गए थे, 22 किया था, एबीसी में गए थे, कंट्रोल किया एंड देन परचेज लेजर से लोकल परचेज क्लासिफिकेशन वाज परचेज टैक्सेबल। हमने लिखा था सैमसंग मोबाइल क्वांटिटी वाज 140,000, then we say discount received, and then we say minus 2,000 purchase taxable, then we say inputs GST. So once I have defined the percentage, it is taken. तो वो फिर क्या है, 5 अलग अलग मतलब 4 अलग अलग परसेंटेज वाइज है, तो उसका डिस्काउंट 5%, 2%, 3% ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बराबर है। So it is giving me, ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा, e-way डिटेल्स अगर डाला रहेगा तो वहाँ से वो भी मिलता है, मोर डिटेल्स। तो यहाँ पे उसने परसेंटेज के हिसाब से, ये देखो 6% था, पर मेरा डिस्काउंट का एक परसेंटेज स्पेसिफाई कर दिया है, तो उतना परसेंटेज पे वो काटते रहेगा, ऐसा हो गया। हाँ समझे मेरी बात? जो परसेंटेज को आप टैग कर रहे हो वो ही रहेगा ऐसा। मैंने 5% किया था, तो इट्स लॉजिकल ना, आप जो दे रहे हो उसका ही वो वर्किंग कर रहा है। सो नाउ इज देयर एनी क्वेरी सीमा? नहीं तो मैं थोड़ा सा बैंकिंग का या ऑडिट का दिखाना चाहती थी, और ऑडिट के लिए हम जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें जाएंगे। लेट्स हैव लुक वेरिएंस एनालिसिस, वो सब आपको कैसे फटाक से दिखता है वो दिखना चाहिए आपको। क्वेरीज आई है कुछ? सॉरी, क्वेरीज अभी उन्होंने जो पहले ऑडिट मॉड्यूल था उसकी जगह पे मतलब मैं 3-4 ही क्वेरीज हैं,
तू पहले दिखा देना, हम लोग लास्ट में क्वेरीज लेते हैं। चलेगा चलेगा. So now, तीन queries ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है. नाउ यू सी गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में डेटा एनालिसिस आ गया. सो वी एज ऑडिटर, जैसे अभी आपने बोला मैंने भी फॉरेंसिक किया. नाउ द फ्यूचर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यू हैव टू जस्ट वर्क विद द डेटा. उसका एनालिसिस ही करना है. तो सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो उसमें वो फिल्टर मार के देता है कि अकाउंट स्क्वेयर्ड अप ड्यूरिंग द ईयर. सो वन गो आप जब भी क्लाइंट का डेटा आता है आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है करके, कि स्क्वेयर्ड अप ड्यूरिंग द ईयर कितने थे. तो ये सब आपका जब हम देखते हैं सम अकाउंटेंट क्रिएट इवन लोन अकाउंट अंडर डेटेज, मतलब आया गया तो आपको पता भी नहीं चले अनलेस दे हैव क्रिएटेड अंडर द अनसिक्योर्ड लोन, तभी वो स्क्वेयर्ड अप ड्यूरिंग द ईयर पता चलेगा, राइट. अगर डेटेज में भी स्क्वेयर्ड अप ड्यूरिंग द ईयर है, फिर तो एक्सेल में एक्सपोर्ट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इसमें बिल था, सेल बिल था या नहीं था. बेसिकली आप सेल्स का रजिस्टर को एक्सेल में एक्सपोर्ट करोगे, वहाँ एक्सट्रैक्ट में आता ही है पार्टी वाइज. सो पार्टी के नाम के साथ और ये नाम के साथ आप विल लुकअप मार दो तो आपको समझ में आता है कि जो लेजर स्क्वेयर्ड अप ड्यूरिंग द ईयर है और डेटेज में वो फॉल ही नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल. आई गेटिंग मी? So then it becomes the question of checking for you कि whether loans were there or advances were there and just no transaction, no purchase sales transaction happened during the year. So that is the way out. Not use, वो भी हमें खोल के रखा है, क्यों नहीं यूज कर रहा है. That can be a question. Not using current year, क्या रीजन था वो भी समझ में आता है. So these are the filters, inbuilt filters in the time. कंसर्न हो जाएगा, फिर आप एंटर किया तो वो ऑन होल्ड या वेरीफाइड. ऑन होल्ड है या पूछना है कि भाई क्यों बाकी है, क्या आप उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हो. और मैंने एंटर करती हूँ तो सीधा अंदर लेके जाते हैं. फिर वेरीफाई कर सकते हो, वेरिफिकेशन नोट डालना है डाल सकते हो, जो हम पहले ऑडिट में करते थे वैसे. एंड यूज ओनली इन करंट ईयर्स. इसी साल में वो खाता खुला है, सो नया खाता कोई खुलता है तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड करके. वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस, जो प्रीवियस ईयर का डेटा रहेगा ऑडिटेड, वो यहाँ पे लोड करके कंपेयर कंपनी करके आपको देखना पड़ेगा कि पुराने साल का डेटा कहाँ है. उसको लोड करो और वो कंपेयर करके थ्रो करता है, डिफरेंस रहेगा तो. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स. वी जनरली लाइक टू कंपेयर द डेटा विद द प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर कि क्या उससे चल रहा है. लेट्स हैव सेल्स अकाउंट एंड लेट्स कंपेयर इट विद द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. पीरियड बाय डिफॉल्ट टैली शोज यू आप क्वार्टरली ऑडिट कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, मंथली ऑडिट कर रहे हो. आप मंथ ऑन मंथ, प्रीवियस ईयर में सेम मंथ पैटर्न, जो भी आपको मंथ या क्वार्टर डिफाइन करना है आप कर सकते हैं. बिकॉज जब ये टॉगल हो रहा है मतलब इट इज अ सिलेक्टिव सिलेक्शन की इज पॉसिबल, सिलेक्शन पीरियड इज पॉसिबल. एंड देयर इज अ वेरिएंस. यू विल सी कि लास्ट ईयर और करंट ईयर में क्या कंपैरेटिव डिफरेंस है. वो प्रीवियस ईयर 1920 ले रहा है, करंट ईयर 2021 ले रहा है. दिस इज द बेस ईयर एंड दिस इज द करंट ईयर. व्हाट इज द डिफरेंस यू कैन कम टू नो. यहाँ पे मुझे देखना है, समझो पूरे साल का 19 से 20 एंड 18 से 19, मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ हाथ से डाल के चेक कर सकती हूँ. So this becomes the idea. One go. If जब टैली का डेटा क्लाइंट से आता है एज अ सीए, हम हाफ एन आवर इसको एनालिसिस कर ले हुए तो आर्टिकल को क्या चेक करना है, विच आर द एक्सपेंसेस वेयर दे शुड फोकस, वेयर द ग्रे एरिया लाइज, वो इमीडिएटली आप डिफाइन कर सकते हो. अगर पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है, सेल्स ऑर्डर बना है, पेंडिंग रिसीवेबल्स, इसमें सबसे ज्यादा ग्रे एरिया इज फॉर अस इज ऑन अकाउंट वाउचर्स. उनको बोलना है ऑन अकाउंट वाउचर्स विल नॉट मेक सेंस. तो उनके अकाउंटेंट या आर्टिकल्स या जो भी है, जो अकाउंट्स लिखता है डेटा ऑपरेटर, यू टू मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस प्लीज adjust that on account transaction to a proper bill. क्रेडिटर्स में तो ज्यादा करके आपको कराना पड़ेगा. दैट इनपुट क्रेडिट रिवर्सल रूल 17(2) जो भी है आपका, उसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ता है. सो क्रेडिटर्स इज वेरी
इम्पोर्टेंट। अब आप देख सकते हो कि मैं नेट पेंडिंग पेएबल समरी में खड़ी हूँ और सन्ड्री डेटर्स तो वो रेड में थ्रो करता है अगर डेटर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस। तो डेटर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस इज आल्सो अगेन मैटर ऑफ कंसर्न के एडवांस आके पड़ा है, इन्होंने बिल नहीं बनाया है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, व्हाट इज द स्टेटस। तो दैट नीड टू बी चेक। बिल बनाना रहेगा या शिफ्टिंग परचेज आई मीन सेल्स लायबिलिटी टू द नेक्स्ट पीरियड। ट्रेडर को अभी नहीं है लेकिन काफी टाइम से पड़ा है, तो इट विल यू एज ऑडिटर विल प्रॉब इनटू यू नो why there is a credit line in a debtor's ledger. Okay, so that all need to be sorted out. Then periodic payments and receipts. What do you mean by periodic payments is that for example telephone expenses या electricity expenses या rent for the office rent, ये जो expenses होते हैं वो आपके periodical nature वाले होते हैं, तो आप उसको टैगिंग कर सकते हैं कि ये मेरा periodic ledger है, मैंने उसको अपडेट करना है। फिर मेरा ऑफिस रेंट है, मैंने स्पेस बार मारा और अपडेट किया उसको। ओके, and if there is anything which here I can find out electricity expense तो पार्किंग कर रहा है, so we can tell him कि भाई ऐसे ही बिना इलेक्ट्रिसिटी कैसे जी रहा है वो। ओके, so then we go to repeated transactions। साल में जो ट्रांजैक्शंस रिपीट हुई है अमाउंट वाइज वो थ्रो करता है। इट इज एन एनालिसिस, उसका नाम ही है, मॉड्यूल का नाम ही है डेटा एनालिसिस। हाउ यू यूज इट, हाउ व्हाट इंटरप्रिटेशन यू वांट टू डू, बट एट वन प्लेस यू आर गेटिंग एवरी इंफॉर्मेशन, क्या दिया है, कैसे किया है, किस पार्टी में मैक्सिमम वो हुआ है। सो रिपीटेड ट्रांजैक्शन से आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। रिलेटिव साइज फैक्टर फॉरेंसिक में सबसे ज्यादा यूज होता है ये RSF। Relative size factor is that highest transactions, the next highest transaction के बीच का difference क्या है in that particular region. So up to 2 it's fine, 1 is fine, 1 or 2. Otherwise it needs you need to check into कि transactions में कितना variance आ रहा है। तो maximum number that implies कि कोई गलत transaction तो इस particular ledger में नहीं चला गया था। Then you need to check. This is the variance, but it's okay. Sales transactions है, I have to just it throws me a report which I have to interpret depending on my working and understanding. ठीक है? Interbank transactions, if there are two banks, it will show you, और उस transactions बैंक डेट नहीं डाला है इसके लिए वो so many days वो दिखा रहा है। कैश विड्रॉल्स, वो निकलने के बाद बैंक में गया, कब गया, वो कितने दिन डिफरेंशियल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिग कॉर्पोरेट जहाँ पे वो थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम में काम होता है। दिस इज एंड फिक्स एनालिसिस, अगर आपने कुछ खरीदी की है तो डेज वो खुद ही कैलकुलेट करके देता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिप्रिसिएशन चार्ट। हम यहाँ से ही पहले डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं 180 डेज से ज्यादा है, कम है, अकॉर्डिंगली डिप्रिसिएशन चार्ज करना इजी होता है। वन गो ट्रांजैक्शन ज्यादा रहेगा इसमें तो वन गो एनालिसिस फिक्स असेट में बहुत इजी हो जाता है। ट्रांजैक्शन ऑन हॉलीडे, इफ हॉलीडे इज स्पेसिफाइड, संडे इज अ स्पेसिफाइड वीकली ऑफ, उसके अलावा अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो राइट साइड पे बटन है यू डू हॉलीडे, जो भी आपको से यहाँ पे मैंने ऑलरेडी संडे लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डेट डाल सकते हैं कि भाई 15 अगस्त को हमारी कंपनी बंद रहेगी। सो अकॉर्डिंगली जो जो होली का ये जो भी आपका मेन है वो आप कर सकते हो, और उस दिन को ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं वो अगर है तो वो यहाँ पे थ्रो करेगा। एंड लकीली सी वी कैन सी सब्या स्टोर से कुछ आया है। सो दीज नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज के ये एग्जैक्ट अभी IMPS टुडे एवरीथिंग हैपेंस, सो ऑन holiday also transaction can happen, so that it is just throwing you the result reports, वो उसको materiality as well as क्या बोलते हैं ऑथेंटिसिटी वी नीड टू चेक। हाँ IMPS है, बैंक में दिख रहा है, सो इट इज फेयर। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ट्रांजैक्शंस, तो
दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिपोर्ट जहां आपको आइडिया आ जाएगी कि हाईएस्ट ट्रांजैक्शन उस लेजर में कितने अमाउंट का हुआ था. So ये or everything is what I'm trying to show you that n numbers of reports are available which you can just click of button आप analysis कर सकते हैं. एडवांस दिया था किसी पार्टी को, बाकी है तो वो एक ही जगह पे वो लोग पार्क करके आपको दिखाते हैं. स्टेल चेक्स इंस्ट्रूमेंट्स, अभी तो आजकल चेक्स इतने है ही है, फिर भी कुछ रह गया है, कोई चेक स्टेल में पड़ा है तो वो मालूम पड़ता है. बैंक डेट डालना जरूरी है, नहीं तो रिपोर्ट्स एम्बिगुअस आएंगे. अब ये है वाउचर वेरिफिकेशन, उसमें आपको सैंपल बनाना पड़ता है. मुझे अगर सैंपल बनाना है, सैम्पलिंग मेथड है मेरे पास, अगर मुझे देखना है मैं क्या चेक करूंगी, तो आई में डिसाइड के परचेज ऑल वाउचर्स या अमाउंट रेंज स्पेसिफाई कर दूं. मिनिमम अमाउंट से 20,000 मुझे चेक करना है परचेज, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट एंड देयर साइज ऑफ वर्क. तो आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, अपना 3CD में जो रिलेटेड पार्टी रहता है, तो हमें इतने सारे क्लाइंट के लेजर रहेंगे, हाउ डू वी नो? वी हैव टू आस्क द क्लाइंट टू डिफाइन दिस रिलेटेड पार्टी, और यहाँ जाके वो टैगिंग कर सकते हैं कि भैया ये जो पार्टी जिससे मैं डील कर रहा हूँ से कोई तो XYZ है, ये मेरा जो भी रिलेशन है, यू विल राइट रिलेशन, ब्रदर इज द पार्टनर और वट एवर, so that you can define. अगर ये हम क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है हमारे रिपोर्ट्स निकालना कि इस क्लाइंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई तो इमीडिएटली वो एनी पेमेंट्स 48 का रिपोर्ट्स इजीली डिराइव कर सकते हैं डालने से. तो वो 237 टोटल वाउचर्स में से मैंने राइट एरो इज अ, आई एम शिफ्टिंग राइट एरो टू जंप टू दिस पर्टिकुलर कॉलम. सैंपल वाउचर्स 104. Now this 104 needs the verification. वो 20,000 के ज्यादा के वाउचर है. कंट्रोल एंटर करके आप वाउचर खोल के देख सकते हो, कंट्रोल एंटर करके, और देखने के बाद अगर आपको ओके लगता है तो आप उसको एंटर करेंगे, वेरीफाई कर देंगे, ओके. अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो. देखा मेरे को कुछ बिल देखना है या जो भी है, so I will just press enter and I will ask for external send me bill copy. अगर कुछ भी है आपको या ईमेल भी चाहिए या और उनके जितने रहेंगे ऑपरेटर्स उसमें से किससे आपको चाहिए, तो यू राइट दैट पर्सन्स नेम एंड यू विल फिनिश दैट. तो उसको दिखेगा कि मेरे को क्या सप्लाई करना है. एक्सटर्नल का सेंड मी इनवॉइस कॉपी. सो पूरा एक ऑडिट मैकेनिज्म भी चलता है इसके अंदर. तो वीकली जब GST लिए आता है तभी भी आप कर सकते हो, जब भी आपको करना है कर सकते हो. मॉड्यूल इज फ्रीली अवेलेबल. और यहाँ पे एनालिसिस विंडो में दिखाता है कि एक आपने वेरीफाई किया है और आपका ये एक पेंडिंग है. सो टोटल 2 वाउचर जो मैंने चेक किए, एक में मैंने ओके कर दिया और एक में मैंने एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन मांगा. तो वेरीफाइड वाउचर इज 1, दैट वे इट शोज मी. और यहाँ पे पेंडिंग, सो दिस इज 1 इज पेंडिंग फ्रॉम माय साइड. सो वाउचर वेरिफिकेशन भी मैंने सिखा दिया, ऑडिट भी हो गया, डेटा एनालिसिस भी हो गया. GST रिपोर्ट्स में खाली O प्रेस करके वन रेडीली अवेलेबल है. 3B में वो हमारी साइट की यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है. और GST एनुअल कंप्यूटेशन आल्सो दिस. व्हाट इज मार्क वाउचर? मार्क वाउचर्स आर समथिंग, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन में मार्क वाउचर यस करने पड़ते हैं और उसके बाद जो भी डेटा आता है आपके ऑफिस में और आप एंट्री करोगे तो वो मार्क वाउचर्स में. अभी इसमें क्या था, पूरा मार्क वाउचर आप देखो 880. सो जो कंपनी मेरे वहां काम कर रहा हूँ मैं, उसमें मार्क वाउचर का कोई मतलब नहीं. बट क्लाइंट काम करता है खाली मंथली, मेरे वहां वो डेटा आता है जिप करके, वो मुझे मेल करता है. तो मेरे वहां आने के बाद ही मुझे मार्क वाउचर को एनेबल करना है. दैट विल गिव मी, हमने जो भी करेक्शंस किए हैं वो हम देख सकते हैं एट वन प्लेस ओनली. दिस हाउ इट वर्क्स. मार्क वाउचर्स क्लियर ऑल मार्किंग, यस. अब इसके बाद हम कुछ भी एंट्री करेंगे तो वो यहाँ आके फॉल करता है. इन दिस रिपोर्ट यू गेट इट.
वो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में भी मिलता है मार्क वाउचर. 2 places you get that report, मार्क वाउचर. आर वी थ्रू? क्योंकि ये तो समंदर है, नेवर एंडिंग है. सीमा मैडम जागिए. हाँ वंदना. हाँ बस हमारी तरफ से जितना ज्ञान देना था आज के लिए एक दो काफी. क्वेरीज है, नहीं अच्छा एक्सप्लेन हो गया, थैंक यू. 2-3 क्वेरीज हैं खाली. ये सोनाली, हैव यू लिस्टेड द क्वेरीज? प्लीज शेयर योर स्क्रीन. वंदना प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन. सोनाली. या वंदना. चल भी एक्सेल शुड बी इन पर्टिकुलर फॉर्मेट. इंपोर्टिंग एक्सेल ऐसा नहीं है. ये टैली में से बाहर एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट तो एक्सएमएल होता है, एक्सेल नहीं होता है. एक्सएमएल था वो जो मैंने वाउचर एंटर किया था ना, वाउचर इंपोर्ट किया था, दैट वाज एक्सएमएल फाइल, डेटा इंटरचेंज फाइल. एक्सएमएल जो हम जब इनकम टैक्स का रिटर्न बनाते हैं और वो एक्सएमएल फाइल जनरेट होती है ना, सेम वे मैंने एक्सएमएल जनरेट की थी एक्सपोर्ट करके और फिर उसको इंपोर्ट की थी. एक्सेल टैली में इंपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं. एक्सेल के टेम्पलेट्स आते हैं, वो एडॉन्स मिलते हैं कि क्लाइंट को हमने टेम्पलेट दे दिया एक्सेल का, वो एडॉन्स स्पेसिफिक डिजाइन रहते हैं. मॉड्यूल परचेज एंट्री अगला वो एक्सेल में ही करके दे, सेल्स भी एक्सेल में ही करके दे और हम वो एक प्रोग्राम रन करें और सब इंपोर्ट हो जाता है. तो दैट इज एडॉन्स. वो इंपोर्टिंग एक्सेल तो है ही नहीं, एक्सएमएल है. ओके. So in case we need to give impact of GST on discount, then we can choose debit not mode wherein we can give impact of discount plus GST. Yes. So separately, but अगर बिल में ही देना है तो अलग अलग 5 आइटम है तो 5 डिफरेंट परसेंटेज बनाना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. या जीएसटी लगता ही नहीं है तो फाइनेंशियल डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेज करो, खत्म हो गया ना. और जीएसटी नहीं लग रहा है तो वो तो नीचे वैसे भी डिस्काउंट में वो ले ही नहीं रहा था ना, तो माइनस हो रहा था. वो कल को डिपार्टमेंट आर्ग्यूमेंट करे उसके लिए बेटर है कि उसको आप सेपरेटली करो डिस्काउंट. Data analysis feature is available only in auditor version. No, it is now across the board. Every tally has that auditor. Data verification is the now module available to each one of us. For sampling, if one quarter we have defined amount, say 20K, so then it will like be frozen for whole year or it. मैंने ऊपर जो पीरियड लिया था ना उस हिसाब से वो चल रहा है. तो मेरा ऊपर का पीरियड पूरे साल का है तो पूरे साल के लिए 20,000 लेगा. अगर मैं 1 मंथ ही स्क्रीन पे लूंगी पीरियड और सैंपल में डिफाइन करूंगी तो वो पर्टिकुलर मंथ के लिए डिफाइन करेगा सैंपल. दैट्स व्हाट हाउ इट वर्क्स, यू नो. तो दूसरे क्वार्टर में वो 50,000 से लाख का ले सकती है बेसिकली. दैट्स व्हाट आई आल्सो थिंक एंड दिस इज व्हाट माय इंटरप्रिटेशन. क्योंकि इट इज ऑन द पीरियड विच इज देयर ऑन द अपसाइड. जब मैंने टैली खोला था तो ऊपर एक पीरियड था. अगर वो पीरियड मैंने डिफाइन किया एक क्वार्टर का और उसमें मैं 20,000 का ले सकती हूँ परचेज, नेक्स्ट क्वार्टर में मैं 50,000 ले सकता हूँ सैंपल के लिए. और नहीं भी हुआ ना, मैं चेंज करती हूँ सैंपल थ्रो हायर साइड का. आप जब थ्रो करोगे 50,000 वाला तो आप जिस क्वार्टर का ऑडिट करना चाहते हैं आप तो उधर ही जाके एंटर करके वहां से वो सैंपल को सिलेक्ट करोगे ना. आप समझ रहे हैं? आप चेंज कर सकते हो एनी टाइम वट एवर सैंपल सिलेक्शन यू आर डूइंग, राइट. क्योंकि वो तो फिर मंथ वाइज वो मुझे निकाल के देता है कि ये वाउचर 50,000 से ज्यादा है ऑडिट के लिए. पूरे साल का भी क्या तो पूरे साल का मंथ वाइज 50,000 से ज्यादा कौन सा वाउचर है वो दिखाई देगा मेरे को.